We've seen the 450th rate point from Kunal Bhatti already in the UA All-Stars Championship. And we've seen Prince Daya get to that 100th rate point already in the previous match. And the second tie for Yogesh Nagar Saab's UP Falcon already coming in very early in the UA All-Stars Championship in day 4. Imagine he's already got 2 ties. Well, that is what it is. And this is Vandana Kataria Indoor Stadium right here in Haridwar. I am Naveen Shori, welcoming you all once again, and UP Falcons, as I said, against the Vasco Vipers. The next match is very important for the Junior Steelers because they need to go up in their table against the Chandigarh Chargers, and then comes the UA Paltan against the UA Yodhas after the lunch break, and then the Rampaging Elephants against the Paltans. They were rampaging yesterday, but against the Mumbas, can they repeat the same thing against the UA Mumba? That's a big question that's coming up at 5:30. That's day 4, but more importantly, to get into this match, what we will also want to know is where the teams are on that points table. That's really interesting. Pool A, if you look at where the Junior Steelers are, 9 points, and they are on the 5th position. Yesterday, they had a little bit of a tough match going in. Only 1 loss because it was a 33-point difference loss. That's a big problem there for the Junior Steelers, and that's why they're on the 5th position. They need this victory very, very badly. But if you look at where the Chandigarh Chargers are, yesterday they beat the Kurukshetra Warriors. Massive victory. And look at the way they have jumped up to number 2. And this table is completely opened up. Everybody can go in to make sure that they are in the top 4. Remember, only top 4 teams go into the next stage. But what are the players doing? They are warming up. Yes, they are getting ready for this wonderful, wonderful match that's coming in. Junior Steelers and the Chandigarh Chargers. Yeah, there we go. That is what is really important because the Junior Steelers, as I said, will want to get on top. But more importantly, if you look at Chetan Sahu, what he's doing is completely gearing up. He's completely getting ready and warming up. But for the Junior Steelers, it's more important that not just Jaspir Dhaya, also Mayank Saini starts to fire. Mayank Saini, yeah, there you go. He's stretching up and doing everything that's needed for a match to be getting in. But this is the Junior Steelers taking on the Chandigarh Chargers because really important match for the Junior Steelers. In their table, they'll have to walk up, and they'll have to walk up big. 33 points on the score difference is not a small amount. They'll need to do, and they'll need to do a lot. Right, what is there in this match to watch out for? As Chetan Sahu is really, really important for us because 174 rate points for him, and Chetan Sahu needs to continue doing the same thing because what is more necessary is for his team, there should also be a support system that's coming in as well, because when Chetan Sahu is on that support line, he needs to go out there and get all those rate points. But more importantly, what has Mayank Saini also done to his team is not what the point is, because Chetan Sahu 174 rate points and a Super 10 in the previous match as well. So that's really, really good because against Chetan Sahu, you know what, there will be Manigandan Nesamani against the Steelers. Yeah, isn't it? Because Chetan Sahu will probably be looking at Manigandan Nesamani in that left cover position. But more importantly, now what is the raider of the Junior Steelers has done? Mayank Saini. More important for him, more experienced compared to Chetan Sahu as well. See, because Mayank Saini 271 rate points, really well done. But he will once again be looking at that corner positions. He will go out there and attack the right corner. More importantly, Ankit Dhul coming in into that right corner from the Chandigarh Chargers. So Ankit Dhul is there. So remember, Mayank Saini likes to run towards the right corner and attack it. But it is a big, tough challenge that's been going in. But who is the right corner again watching out for is for the Junior Steelers is the Jaspir Dhaya man. Why? Because of Manigandan Nesamani and that right corner combination of Jaspir Dhaya. Look what has happened. Manigandan Nesamani on that right cover moves away, sets the trap, and then on that 57 tackle points, what Jaspir Dhaya has got, lot of credit that goes into the coordination between that right cover and the right corner. So why wait? Let's go in and bring out these two teams on the mat very quickly and see if the Junior Steelers can do some good for their score difference. Right, as we're all set to make sure the Chandigarh Chargers in their pool will hold on to that top second slot. Put your hands together
for Ankit's coached Chandigarh Chargers. In the bottom two of their points table, the Steelers need to have a might of steel and a nerve that will not bend down at any heat. That is possible when Mayank Saini does it. So, put your hands together for Dilbagh Singh's coached Junior Steelers. दो अलग पूल्स, दो अलग टीमें, दो ऐसी टीमें जिन्होंने अब तक दो मुकाबले खेले हैं। एक तरफ चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम है जिन्होंने खेले गए दो मुकाबलों में से एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला गंवाया है। दूसरी तरफ जूनियर स्टीलर्स की टीम है जो पूल ए से आती है, हर जगह तबाही मचाती है, अब तक हार का स्वाद चखा नहीं है। खेले गए दो मुकाबलों में से एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला टाई रहा। का सीधा सा मतलब यह है कि अब तक सूरत हाल जूनियर स्टीलर्स के पक्ष में गया है, लेकिन सामने चैलेंज चंडीगढ़ चार्जर्स का। लाइनअप को यदि देखें तो चेतन साहू, प्रताप सिंह और वीरेंद्र सिंह ये रेडर का ट्रायो रहने वाला है। चेतन साहू को बाकी रेडर्स से सपोर्ट चाहिए, प्रताप और वीरेंद्र को स्टेप अप करना पड़ेगा। डिफेंस को देखें तो कवर संभालते हुए सनी और रवि तेलहान नजर आने वाले हैं। वही कॉर्नर्स पे वही भूमिका अंकित धुल और उनके साथ संदीप सैनी निभाने वाले हैं। संदीप सैनी, अंकित धुल कॉर्नर्स की जोड़ी अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ कवर्स का सपोर्ट मिले तो थोड़ा और बेहतर होगा। बबलू, विक्रम, कुलविंदर, दीपक, विजय ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल सबस पे, लेकिन जब कोच चाहेंगे इनको बुला लिया जाएगा। फिलहाल वक्त है मेरे साथी कमेंटेटर को बुलाने का। स्वागत करना चाहूंगा मोनू का। थैंक यू आयुष, और आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं एनर्जी दिखाई दी है हमारे प्रेजेंटर नवीन की, साथ ही कमेंटेटर आयुष की, उम्मीद करते हैं कि वही एनर्जी हमें प्लेयर्स के बीच दिखाई दे। जैसा कि आपने बताया कि स्टीलर्स अभी तक हार का स्वाद चखे नहीं है। पहला मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, दूसरे मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन युवा कबड्डी में अगर किसी प्लेयर की बात होती है तो फिर इस मैच में चेतन साहू के ऊपर आप नजर बना के रखिए। ऑल युवा कबड्डी एडिशंस की बात करेंगे तो 174 रेट पॉइंट नजर आ रहे हैं। 15 मुकाबले खेले, यानी कि 70 से ज्यादा का कह सकते हैं आप रेट, स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। यानी कि कमाल, लाजवाब प्रदर्शन अभी तक हमें देखने को मिला है चेतन के द्वारा। और आपने बात की थी कि इन्हें साथ मिलना चाहिए, अगर साथ मिलता है तो यकीन मानिए इनकी टीम बहुत आगे जाएगी इस एडिशन में। और वहीं दूसरी तरफ इनके खेमे के विरुद्ध जूनियर स्टीलर्स की टीम है, जिस टीम ने कुछ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन दिक्कतें सिर्फ कुछ इस प्रकार की रही है कि जब तक स्टीलर्स की टीम एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, चंडीगढ़ की टीम के सामने दावा बोलने के प्रयत्न करेंगे, तब तक संभवतः है चंडीगढ़ की टीम एकजुट होकर खेलें। आयुष सिंह, ऋतिक, मयंक सैनी ये रेडर का ट्रायो रहने वाला है। अब ऋतिक और मयंक सैनी कैसा खेल दिखाते हैं उस पे जूनियर स्टीलर्स की पूरी निर्भरता रहने वाली है। वहीं मणिकंदन के साथ में योगेश चहल कवर्स को संभालेंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर जसबीर दहिया नजर आएंगे। जसबीर दहिया को यदि आज सपोर्ट मिलता है बाकी कवर्स के खिलाड़ियों का तो संभवतः डिफेंस में जूनियर स्टीलर्स थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। साहिल नरवाल उनके साथ में लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हैं। मणिकंदन, अजय, निशांत, नीलेश, हनी गोयात ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल सबस पे हैं। तो लाइनअप अच्छा नजर आता है मोनू, लेकिन सवाल यह है कि स्टेप अप ऑन ए गिवन डे कौन सा खिलाड़ी आपके लिए करता है। और हर मुकाबले में हमारे दर्शकों के लिए फैन कोड की मदद से हम एक खिलाड़ी को चुन के लाते हैं, और आज के मुकाबले का ये खिलाड़ी मयंक है, जिनके ऊपर निगाहें रखनी पड़ेगी। हर संस्करण को मिला के यदि देखा जाए तो कुल मिला के 271 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 50 से कम मैचेस है। रीडिंग स्ट्राइक रेट तुलनात्मक तौर पे 70 से तो कम है, लेकिन फिर भी 60 का जो स्ट्राइक रेट है वो बुरा नहीं माना जा सकता। लेकिन 75 का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा मयंक सैनी के द्वारा 24 रेट पॉइंट 2 मुकाबलों में, यानी कि ओवरऑल उनका 60 का जरूर है, लेकिन यहाँ पर 75 और 75 पर तो बहुत अच्छे आंकड़े हमें नजर आते हैं। 75% रेट स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है, तो फिर यकीन मानिए मयंक सैनी ने पिछले 2 मुकाबले कमाल के खेले और ये बड़ा मुकाबला है, तो बहुत सारे फैंस की नजर है मयंक के ऊपर।
मोनू, औसतन देखा जाए तो हर मुकाबले में 12 पॉइंट जो कि इस संस्करण में उनका सफर रहा है मयंक का आला दर्जे का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने टॉस जीता, पहले लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया। का सीधा सा मतलब यह है कि जूनियर स्टीलर्स की टीम को इस मुकाबले की पहली रेड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हो सकता है कि मयंक इस मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए आए। यदि ऐसा हुआ तो चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के डिफेंस में अंकित धुल उनको रोकने के लिए तैयार रहेंगे। कोचेस की अहम भूमिका रहती है मयंक, फर्क नहीं पड़ता मुकाबला कोई भी क्यों ना हो। दिलबाग सिंह नाम तो आपने सुना ही होगा, कमाल के कोच हैं, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं और वही वजह है कि जूनियर स्टीलर्स बिल्कुल अच्छा खेल रही है, कमाल का खेल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक यंग कोच आपको नजर आ रहे हैं अंकित, जिम्मेदारी तो इनके ऊपर भी रहेगी क्योंकि चंडीगढ़ चार्जर्स पिछले मुकाबले कमाल का खेल है। चाहे हम बात करें डिवीजन राउंड की, वहां पर भी अच्छा खेल के आई है, लेकिन आज लड़ाई हो रही है जूनियर स्टीलर्स से, तो चैलेंज थोड़ा सा बड़ा रहेगा आयुष, इसमें कोई दो राय है नहीं। बड़ा चैलेंज है। जूनियर स्टीलर्स की टीम एक नई टीम है, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ढूंढने की तैयारी भी करेगी। प्लेयर फेस ऑफ को यदि देखा जाए तो चेतन साहू रेड लगाते हुए 174 पॉइंट है उनके सामने। मयंक सैनी कुल मिला के 271 रेड पॉइंट कमाए इस खिलाड़ी ने। तो ये वो प्लेयर्स है जिनके ऊपर निगाह बनाए रखिएगा। हो सकता है मुकाबले की पहली रेड में मयंक सैनी आए और दूसरी रेड में चेतन। प्लेयर्स की बैटल हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, चाहे वो डिफेंडर्स हो चाहे वो रेडर्स हो, लेकिन कुछ की स्टोरीज होती है जो हर मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो बताती है कि ये मुकाबला हमें ले किस तरफ जा रहा है। चंडीगढ़ का डिफेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन रेडर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा चेतन साहू का, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं डिफेंड करते हुए जो चंडीगढ़ स्टीलर्स का डिपार्टमेंट है उसको जसबीर दहिया से इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ जसबीर दहिया को भी बाकी खिलाड़ियों का सपोर्ट चाहिए होगा। रेडर्स की बैटल हमने आपको पहले ही बता दी, चेतन साहू बनाम मयंक सैनी, ये वो की बैटल्स है जिनके लिए हम और आप सभी तत्पर है और बड़ी व्याकुलता के साथ इस मुकाबले की शुरुआत का कर रहे हैं इंतजार। तो फिलहाल वक्त है काउंटडाउन का, लाइव एक्शन उस पार। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 हरिद्वार के बेहतरीन शहर में हम मौजूद हैं और नंदिनी जी तैयार है इस मुकाबले की विसल बजा के पहली रेड के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ की टीम ने टॉस जीता, पहले लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया। सीधा सा मतलब जूनियर स्टीलर्स की टीम मुकाबले की पहली रेड के साथ आएगी। हैशटैग जोश, जज्बा, जुनून गर्म है हर खिलाड़ी का खून, लेकिन ये उबलता हुआ खून किसके लिए पॉइंट्स निकालता है, ये 40 मिनट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का इस बड़े मुकाबले के लिए। कमेंट बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए मोनू शर्मा। मोनू, स्वागत आपका। क्या मुकाबले की पहली रेड में आप अपेक्षा करते हैं किसी अंक की? बिल्कुल करते हैं। जब आपने बैटल को बताया था कि वहां पर दो रेडर्स के बीच में बैटल है, तो यकीनी तौर पर पहली रेड में पॉइंट आना चाहिए और वो प्रूफ भी कर दिया है। जूनियर स्टीलर्स की तरफ से रेड डाली गई और अच्छा वहां पर देखिए किक का इस्तेमाल किया, रनिंग किक लगाई और डिफेंडर अपने आप को नहीं बचा पाए, पहला पॉइंट आया। और आयुष, एक सवाल सबसे पहले तो यही रहेगा, जैसा हमने देखा था कि यार रेडर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है, दो बेहतरीन रेडर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिले। क्या ये मुकाबला हाई स्कोरिंग होने वाला है, 40 से 50 के आसपास या 50 को क्रॉस करने वाला है? पहले जूनियर स्टीलर्स के रेडर्स ने खाता खोला, उसके बाद डिफेंस ने अपना कार्य किया। तो जो बेस्ट डिफेंडर थे अंकित वो बाहर है, जो बेस्ट रेडर है चंडीगढ़ की टीम के चेतन वो भी मैच से बाहर है। कवर्स के खिलाड़ियों ने चेन को तोड़ा, उसके बाद बैक होल्ड की और ये सुनिश्चित किया कि किसी तरीके से चेतन साहू के पास बाहर जाने का कोई रास्ता ना बचे। तो दो बड़े खिलाड़ी चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए मैट पे मौजूद नहीं है। इस परिस्थिति का फायदा क्या जूनियर स्टीलर्स उठा सकती है? क्या आयुष सिंह इस रेड पे एक और जख्म पे नमक छिड़क सकते हैं चंडीगढ़ चार्जर्स के? बिल्कुल छिड़क सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। और यहाँ पर भी कमाल का टोटस तो किया है, क्या पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एम्प्टी हैंड वापस आ गए जूनियर स्टीलर्स के आयुष सिंह। लेकिन आयुष, जैसा कि आपने बताया कि जब आपके दो प्लेयर बाहर चले जाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन वहां से उभरना पड़ेगा। चंडीगढ़ चार्जर्स के जो रेडर्स हैं ना, उन्हें बेहतर करना ही पड़ेगा। जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना, उनको भी ना कभी कभी वो दायित्व निभाना पड़ता है। वीरेंद्र इस समय रेड कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रगल किया नहीं, परसूट लगाया है, लेकिन बचा लिया अपने आप को। ऋतिक गए रेड करने के लिए, 5 का डिफेंस।
जी आयुष। एक बार फिर अंकित धुल को बाहर ले जाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे और इनफैक्ट जब आपके बड़े प्लेयर्स बाहर हों, एक ऐसा खिलाड़ी जो कॉर्नर की पोजीशन संभालता है, जिसने पिछले मुकाबले में हाई फाई पूरा किया है, सोलो टैकल के लिए चले गए थे, टर्न और ट्विस्ट दिखाते हुए ऋतिक, जो कि संभवतः इस टीम के एक फुल फ्लेजेड फर्स्ट या प्राइमरी रेडर नहीं है, उन्होंने भी पॉइंट निकाल के ये सुनिश्चित किया है कि जूनियर स्टीलर, जिसने इस संस्करण में एक भी मुकाबला गंवाया नहीं, हालांकि सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, एक टाई खेला है, वो इस मुकाबले में भी हार का स्वाद ना चखे। अगर ऐसा परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चखेंगे। एक और रेडर को उन्होंने डैश आउट कर दिया है, एक और टैकल पॉइंट लिया है जूनियर स्टीलर्स। ये कमाल का प्रदर्शन कर रही है इस एडिशन में। पहला मुकाबला जरूर टाई पर खत्म हुआ, लेकिन वो मुकाबला भी इन्होंने जबरदस्ती टाई पर खत्म करवाया था। पिछड़ गई थी टीम पूरी तरह से अंतिम कुछ मिनट में। दूसरा मुकाबला बड़े मार्जिन के साथ जीता है और तीसरे मुकाबले की शुरुआत तो कमाल लाजवाब हुई है। इस समय ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ चार्जर के पास। अगर इस समय आप मयंक सैनी का शिकार कर लेते तो यकीनी तौर पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मयंक सैनी, इनके आंकड़े थोड़ी देर पहले ही हमने देखे, सभी दर्शकों को बताए कि किस प्रकार के रेडर हैं। ज्यादा रिस्क लिया नहीं, प्रयास किया नहीं, एम्प्टी हैंड वापस चले गए। और अच्छी सोच थी मयंक सैनी की, क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति नहीं थी। संभवतः अगली रेड डू और डाई में आए, क्योंकि चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने खेले गए 2 मुकाबले में ऐसे 4 डिफेंडर्स देखे हैं जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट किया है। तो डिफेंडिंग जबरदस्त है। इज माय ट्रिप सुपर टैकल। इससे पहले कि हम शुरू करते इस टैकल को, समाप्ति कर दी है चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने 2 पॉइंट्स के साथ और खोल दिया है इस मुकाबले में अपना खाता। देर आए क्या दुरुस्त आए हैं इज माय ट्रिप सुपर टैकल के साथ। कमाल, लाजवाब। देखिए, परसूट लगाने के लिए गए थे, एकदम से तैयार थे वहां पर जर्सी नंबर 5। जाते ही उनके पैर को पकड़ लिया और सपोर्ट मिल गया उन्हें रवि का, साथ में एक और प्लेयर का, यानी कि 3 के 3 डिफेंडर मौजूद थे, वो इंक्लूड हमें नजर आए और ईज बाई ट्रिप सुपर टैकल किया, यानी कि खाता भी खोला है तो एक बड़े कमाल धमाल के साथ। बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए। इस टैकल से यकीनी तौर पर इनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। यदि मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है तो अब तक 5 सुपर टैकल की सिचुएशन में कामयाबी हासिल की है चंडीगढ़ चार्जर्स टीम ने इस मुकाबले में, और 4 का घर है। सबसे जटिल, सबसे कठिन परिस्थिति मानी जाती है और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए आयुष सिंह 4-2 का स्कोर लाइन जूनियर स्टीलर्स के पक्ष में है। कॉर्नर टू कॉर्नर महज चहलकदमी कर रहे हैं और क्योंकि टीम लीड पे है, ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। समय का इस्तेमाल करते हुए, अपनी कैंट को यूज करते हुए एम्प्टी हैंडेड अपने घर में वापस जाएंगे। डू और डाई आइए, एंजॉय कीजिए मोनू। पहली डू और डाई हमें देखने को मिली है इस मुकाबले की, और प्रताप सिंह उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए चले गए, यानी कि इस समय आपको पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। बोनस लाइन जो दिख रही है वो एक्टिव है, आप बोनस के सहारे अपने आप को भी जीवित रख सकते हैं, लेकिन वहां पर टच पॉइंट की मांग की जा रही थी, उससे पहले प्रहार कर दिया डिफेंडर्स ने, दोनों थाइस को पकड़ा और जो सपोर्ट आया वो कमाल का था। मिल गया टैकल पॉइंट जूनियर स्टीलर्स को। डू और डाई की परिस्थिति जिसमें दबाव हमेशा रेडर पे होता है। चेन को तोड़ा गया था, फ्रंटल ब्लॉक के लिए योगेश आए, अपने साथी खिलाड़ी के साथ चेन टैकल की और अंतिम समय पे जब तक चेन टूटी तब तक सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस भी टूट पड़ी थी। अब परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन हो चुकी है चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए। एक बार फिर ईज माय ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। यदि डिप वाइज जो रेड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 6 से 7 जो डिप लगाई है उसमें कुल मिला के 77% के सक्सेस के आंकड़े मयंक सैनी के नजर आते हैं, लेकिन हर एक मुकाबले में ये आंकड़े आपको बदलते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ चार्जर्स ऐसा लगता है कि अगली बार डू और डाई पे आके ही पॉइंट निकालने की कोशिश करेगा। सरप्राइज किया पूरी तरह से, रेडर जाकर खड़े भी नहीं हुए, उससे पहले उनका बैक होल्ड कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले से तैयार बैठे थे लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर। ये हुआ क्या, ये तो समझ में भी नहीं आया। यदि आपके पास गति है तो आपके प्रतिद्वंद्वी के लिए क्षति है। रेड लगाने के लिए रेडर जैसे ही पहुंचे, सरप्राइज टैकल के साथ साहिल नरवाल ने चेन को तोड़ते हुए बैक होल्ड भी किया और सुनिश्चित किया कि रेडर को एकदम पीछे एंड लाइन तक धकेल दिया जाए। इंडिया 1 ATM स्टार मूवमेंट आज के मुकाबले का हमने देख लिया है, तो साथ ही साथ डू और डाई की परिस्थिति पुनः आ चुकी है, यानी कि ईज माय ट्रिप सुपर टैकल भी ऑन है और ऐसी परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करना ये मयंक सैनी के बाएं हाथ का खेल है। अब चंडीगढ़ चार्जर्स के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल मंडरा रहा है, सिर्फ एक प्लेयर बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चतुराई के साथ अपने आप को बचाया मयंक ने। डू और डाई की सिचुएशन के साथ साथ
अपोनेंट्स के पास ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, थोड़ा सा दबाव जरूर था, लेकिन मयंक सैनी अच्छे प्लेयर हैं, अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करना जानते हैं। इजीली वो पॉइंट लिया और बिल्कुल धकेल दिया है चंडीगढ़ चार्जर्स को ऑल आउट के नजदीक। आखिरी योद्धा बचे हुए हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है। बबलू सिंह को लेकर आए और आते ही उन्हें आग के अंगारों पर चलना पड़ेगा। चलना कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ टच पॉइंट चाहिए, बोनस भी मिल जाता है तो फिर उससे कुछ भी फायदा होगा नहीं। आपको रिवाइवल चाहिए और लग रहा है कि रिवाइवल मिल जाएगा। जब तक औपचारिक कोई फैसला आया नहीं है, बबलू को कोई आवश्यकता है नहीं रिव्यू पे जाने की। हालांकि हमारी पूरी ऑफिशियल टीम आपस में संभवतः यहाँ चर्चा करेगी। पुनः देखते हैं हुआ क्या। पहले तो साहिल को छकाने की कोशिश की, फिर कवर के खिलाड़ी के सामने टर्न और ट्विस्ट दिखाया। संभवतः पूरी बॉडी लॉबी में पैरेलल है, तो मुझे लगता है रेडर को सेफ देना चाहिए, 1 पॉइंट मिलना चाहिए। हालांकि औपचारिक फैसला अभी भी हमारे एम्पायर का आना बाकी, और जो उन्हें लगता है वो संभवतः हमसे ज्यादा सही। रेडर आउट, बोनस पॉइंट चंडीगढ़ चार्जर्स। रेडर आउट, 1+2 3 पॉइंट्स जूनियर स्टीलर्स। ऑल आउट चंडीगढ़ चार्जर्स। सिर्फ एक बोनस देखिए गया है। टू डिफेंडर, जैसे नंबर 10 and 11 स्टैंड हियर। क्या यहाँ रिव्यू लिया है? You umpire, Chandigarh Charger challenges Raider save 2 points. Our decision Raider out. Please review. जी आयुष, बिल्कुल रिव्यू की मांग की गई है। पहले तो फैसला ये आया है कि रेडर को बोनस मिला है और फिर उसके बाद डैश आउट कर दिया गया है, तो फिर जूनियर स्टीलर्स को मिल गए 1+2 टोटल 3 पॉइंट, दे दिया टीम को ऑल आउट। लेकिन इस समय रेडर के द्वारा मांग की गई है कि मैं सेफ हूं, मुझे बोनस के साथ टच पॉइंट भी चाहिए ही चाहिए। बोनस तो आपने दे दिया है, लेकिन जो आपने मुझे आउट करार दिया है, मैं आउट नहीं नॉट आउट हूं इस मुकाबले में अभी तक। पाँव अब तक लॉबी में है, फिर पूरी बॉडी एरियल हो जाती है, यानी कि हवा में हो जाती है। देखिए, क्योंकि इनका बायां हाथ जो है वो बाहर लैंड हुआ, तो संभवतः जब मिडलाइन को क्रॉस किया तो उस एंट्री को बाहर से अंदर की तरफ माना जाएगा और जो रिव्यू है वो गंवाना पड़ेगा। अब कई सारी संभावनाएं हैं, अगर मगर की इस डगर में पहले क्या एक्शन में हुआ वही हमारे जो टीवी एम्पायर हैं वो ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे। Thank you, sir. Review unsuccessful. Bonus point Chandigarh Chargers. Raider out 1+2 3 points. Junior Steelers. Chandigarh Chargers. रिव्यू गवा दिया है। No more reviews. डैश आउट किया गया था और डैश आउट ही हुए। आपने चैलेंज जरूर किया था वहां पर, लेकिन वो फैसला आपके पक्ष में आया नहीं। जितने भी मुकाबले देख रहे हैं हमारे सभी युवा, उन्हें हम बता दें कि यदि बायां हाथ जमीन पे लॉबी के बाहर नहीं आता तो रेडर को सेफ दिया जाता है, क्योंकि जो इंटेक्ट आपका बॉडी का था वो लॉबी में ही था और फिर लॉबी में बॉडी पैरेलल हो गई थी, हवा में तैर रही थी। दिक्कत तब हुई जब बबलू ने अपना बायां हाथ लॉबी के बाहर प्लेस कर दिया और फिर दाएं हाथ से जब उन्होंने मिडलाइन को पार किया तो उस एंट्री को बाहर से अंदर की तरफ माना गया, जो कबड्डी के खेल में वाजिब नहीं है। और चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के विरुद्ध इस मुकाबले का पहला ऑल आउट हमें देखने को मिल गया है। एक बड़ा फासला है। बबलू इस मुकाबले में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, हालांकि शुरुआत में आज टीम का हिस्सा नहीं थे। पिछले 2 मुकाबलों में शुरुआती क्षण से टीम का हिस्सा थे, आज सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। ये हाईलाइन डिफेंस खिलाने के बाद भी सक्सेस मिली है। चंडीगढ़ चार्जर्स का तीसरा पॉइंट है ये डिफेंस के चलते, और ये कमाल का पॉइंट है। आयुष ज्यादा अंदर गए ही नहीं, बाहर की तरफ खेले थे। जर्सी नंबर 5 ने सोचा समझा आक्रमण किया और उसमें सफलता मिली है। यानी कि चार्जर्स की टीम के पास अच्छे स्किल्स हैं, जो इनके प्लेयर्स हैं बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पहले 9 मिनट पर नजर डालेंगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 4 पॉइंट निकाले। वहीं पर जूनियर स्टीलर्स पहुंच गई है 10 पॉइंट पर। चेतन साहू, जिनके ऊपर हमने चर्चाएं की थी मैच के शुरुआती लम्हों में, इनको टीम का साथ देना चाहिए, टीम को इनका साथ देना चाहिए, तब चंडीगढ़ चार्जर्स की जो नई आय जो इस समय बीच मझधार में फंस रही है, किनारे पर जा सकती है। किनारे के लिए सहारे की आवश्यकता है और सहारा देना पड़ेगा। मयंक सैनी रेड लगाने के लिए आया, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज दैट ही हैज नॉट इवन गिवन अ सिंगल अनसक्सेसफुल टैकल एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न। ऑन द अदर हैंड, द प्रॉब्लम विद चंडीगढ़ चार्जर इट सेज दैट दे आर गोइंग फॉर दिस हाईलाइन डिफेंस, और जज्बातों की जगह मैच पे नहीं होती, बाहर जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम से
जज्बातों में बहते हुए सनी ने एक डाइव लगाई थी, कवर्स की पोजीशन पे थे, किसी भी एंगल पे मौजूद नहीं थे, ना ही एंकल पकड़ने के, ना ही डैश आउट करने के। और जब भी आप दोहरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसे खड्डे में जाके गिरते हैं। जी बिल्कुल, आधे अधूरे मन के साथ किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। कभी कभी आपको सफलता जरूर मिल जाती है, लेकिन हर बार आप नहीं कर सकते ऐसा। और वही कुछ हुआ था, आधे अधूरे मन के साथ गई, उन्हें खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हुआ है ना, उस पर आप ज्यादा फोकस रखिए मत। फोकस आपका सिर्फ आगे की तरफ होना चाहिए, और वो फोकस चेतन साहू का था, आगे की तरफ, पीछे की भी तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कई बार प्रयास किया और अंततः आते आते उन्होंने एक डिफेंडर को अपने टच में ले लिया, और इस बार तो जसबीर को अपना शिकार बनाया है। मोनू, यदि आपको याद हो तो मुकाबले की शुरुआत से पहले हम कह रहे थे कि जसबीर को बाकी खिलाड़ियों के साथ की आवश्यकता है, या तो जसबीर को खुले मैदान पे बेहतरीन तरीके से एकदम डीप जाके एक रनिंग एंड टच मारा चेतन ने, और कोई और डिफेंडर कुछ नहीं कर पाया। 11-5 फासला अभी भी जूनियर स्टीलर्स के पक्ष में है। ऋतिक पुनः आ चुके हैं रेड लगाने के लिए। पिछली बार कुछ समय पहले ही, ज्यादा वक्त नहीं हुआ उस बात को, जब इन्होंने परस्यूट लगाया था और थोड़ी सी दिक्कतों में फंसे थे। यहाँ चंडीगढ़ चार्जर्स के डिफेंस में, क्योंकि 6 से 7 जने हैं, बोनस एक्टिवेट था, बोनस निकाला और एक और अंक का इजाफा किया। पिछली बार जसबीर जज्बातों में बह गए, बचा नहीं पाए अपने आप को, शिकार होना पड़ा। चंडीगढ़ चार्जर्स के पास मौका है कि आप यहां से पॉइंट निकालिए। ऑलरेडी जसबीर बाहर हैं, एक और आपने प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चेतन अब धीरे धीरे अपनी परफॉर्म को इंप्रूव करते हुए, इस बार तो 2 टच पॉइंट, एक नहीं 2 प्लेयर्स का शिकार बनाया, यानी कि अब 3 प्लेयर बाहर जा चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है टीम। और ज्यादातर जो नुकसान हुआ है वो कवर्स के खिलाड़ियों की तरफ से हुआ है। हालांकि इन पे मौजूद जसबीर को भी पिछले बार चेतन ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन 3 बैक टू बैक पॉइंट पिछली 2 रेड्स में चंडीगढ़ चार्जर्स के मोराल को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। 7 खिलाड़ी का घर है चंडीगढ़ चार्जर्स का, और उतने ही पॉइंट इस टीम ने कमाए हैं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके बाद लगाई एक कार्टव्हील। आयुष ने कमा लिया अपनी टीम के लिए 13वां पॉइंट। संदीप बाहर। अच्छा बॉडी को स्ट्रेच किया, रनिंग हैंड टच किया, और वो पॉइंट लेकर आए जूनियर स्टीलर्स के लिए, यानी कि रिवाइवल चाहिए था इस समय। 4 की जगह अब 5 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं, यानी कि बोनस लाइन सिर्फ आपको लाइन की तरह नजर आएगी। इसका फायदा नहीं मिलेगा चेतन साहू को। अगर पॉइंट चाहिए तो फिर टच पॉइंट ही लेकर आना पड़ेगा। प्रयास तो कर रहे हैं और एक जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बार कोई डिफेंडर गलती करेगा क्या, लेकिन इस बार डिफेंडर ज्यादा गलती करे नहीं, सीधे खड़े रहे और आमंत्रित करते रहे कि आप थोड़ा सा अंदर आइए, टच पॉइंट की तरफ देखिए। पेस के लिहाज से देखा जाए तो 11 से 20 मिनट तक चंडीगढ़ की टीम का डिफेंस दाढ़ता है। 90% के सक्सेस के आंकड़े हैं। आज अच्छा नहीं किया था, लेकिन जैसे ये आंकड़े हमने बताए, नजर उतर गई चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम की, और उनके डिफेंस ने फिर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ऋतिक जो रेड लगाने के लिए आए, थोड़ी से डीप चले गए, डुबकी लगाने की कोशिश थी, लेकिन तब तक कवर्स के खिलाड़ी को उन्होंने पीठ दिखा दी। और कबड्डी का खेल हो या जिंदगी, जब भी आप पीठ दिखाते हैं, आपकी जगह मैदान जंग में नहीं बनती। टाइम आउट चंडीगढ़ चार्जर्स। तुमको खेलो ठीक है, कितना की रहता है कोई ना, ठीक मारी। राहुल है वो आड़ा बोनस माला हाथ घेर लेना है, वो और मार क्या सर ठीक टाइट। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के खिलाड़ी सनी थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, साई इंस्टीट्यूट जो हमारे फिजियो पार्टनर है, खेलो भाई मरा ठीक है, उनके फिजियोथेरेपिस्ट को आना पड़ा, शिरकत करनी पड़ी बेट पे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सनी अभी भी इस मुकाबले में गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। वो इंजरी कंसर्न बहुत बड़ा नहीं था। 4 का घर है जूनियर स्टीलर्स का, और ये फासला हर बीतते क्षण के साथ चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने कम ही किया है, और उसका सौजन्य चेतन साहू को जाता है। अब तक इस मुकाबले में चेतन साहू ने कुल मिला के 3 पॉइंट कमाए, और वो जो 3 पॉइंट्स आए थे, मोनू ज्यादा वक्त नहीं हुआ, एक 2 पॉइंट की रेड थी, उसके तुरंत बाद अगली रेड पे शिकार किया। तो यदि चेतन साहू को पकड़ लिया गया तो संभवतः जूनियर स्टीलर्स की इस मुकाबले में वापसी है। डैश आउट, चेतन बाहर, कोई तरीका नहीं है वापसी करने का। नहीं है कोई तरीका वापसी करने का, बिल्कुल सही कहा आयुष। इस समय आप चर्चा कर रहे थे कि यही है वो प्लेयर जो अपनी टीम को आगे ले जा सकता है, वापसी करा सकता है। और पिछली कुछ रेड्स पर इन्होंने पॉइंट निकाले थे, वो 3 पॉइंट लिए, चौथे पॉइंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ा और कमाल का डैश आउट हो गया है।
यानी कि एक बड़े प्लेयर को बाहर किया है। जूनियर स्टीलर्स के पास फिर से अपॉर्चुनिटी है कि लीड को बरकरार रखें और टीम को लगातार आगे लेकर जाएं। हर एक पॉइंट से टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जाएं। 14 पॉइंट पर पहुंच गई है जूनियर स्टीलर्स, तो वहीं 8 पॉइंट पर है चंडीगढ़ चार्जर्स। आयो सिंह लगातार रेड कर रहे हैं, ज्यादा कुछ प्रयास करते नहीं है रेड के दौरान, समय को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं, चाहे हम बात करें डिफेंडर्स की या रेडर्स की, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मोनो, इसमें आयुष की गलती नहीं है, ये नाम ही कुछ ऐसा है। इस नाम के लोग ज्यादातर समय पे सिर्फ समय को बर्बाद ही करते हैं, ज्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए जाने नहीं जाते। उसी बीच नहीं, हमारे साथी कमेंटेटर आयुष समय का सही यूटिलाइज कर रहे हैं और एक जगह नहीं, कम से कम 3 से 4 जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुष नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो आयुष मैट पर आपको नजर आ रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। चलिए, जन्नत की हकीकत तो हमें भी पता है, मगर दिल बहलाने का ये तरीका बुरा नहीं है मोनू। 5 अंकों का ये फासला जूनियर स्टीलर्स के पक्ष में। मयंक सैनी बैक टू बैक रेड लगाने के लिए जब भी आए हैं, सक्सेसफुल रेड ज्यादातर अपने टीम के लिए लगाई है और अब तक इस मुकाबले में मयंक सैनी ने 3 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्षण पे आए थे। टर्न और ट्विस्ट सबसे बड़ी ताकत है। अंकित धुल के खिलाफ टर्न करते हुए मिडलाइन के इतना करीब पहुंच गए थे कि कोई अवसर नहीं था अंकित के पास कि बैक को होल्ड कर ले। और जब भी आपकी बैक के ऊपर धावा बोला जाए, एडवांस टैकल की जाए, टर्न और ट्विस्ट से बेहतर तरीका नहीं हो सकता वापस अपने खेमे में जाने का। बिल्कुल, टर्न और ट्विस्ट जब भी आप करेंगे तो फिर ग्रिप बनने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एक सीधा प्लेयर खड़ा हुआ है, उस पर आप अटैक कीजिए, आपकी ग्रिप बन जाएगी, लेकिन जो पहले से टर्न हो रहा है वहां पर आप ग्रिप कैसे बनाएंगे? और यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी रेडर के लिए कि जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा हो तो आप बॉडी को ना टर्न कीजिए। रेडर आउट, 1 पॉइंट जूनियर स्टीलर्स। इस बार तो शायद गलत दिशा में चले गए। पॉइंट्स की अपेक्षा है और अब थोड़े से थक से चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज से साफ प्रतीत हो रहा है। लॉबी का इस्तेमाल कर लिया था बिना किसी खिलाड़ी को टच करते हुए, और इसीलिए लेडर को आउट ऑफ बाउंड करार देते हुए चेतन साहू को बाहर भेज दिया है। का मतलब यह है कि फिर आ चुका है वो लम्हा जिसका इंतजार जूनियर स्टीलर्स की टीम कर रही थी। जब तक चंडीगढ़ चार्जर्स रिवाइव नहीं कर सकती चेतन साहू को, तब तक उनके पॉइंट कमाने के आसार बहुत कम है, क्योंकि चेतन साहू के अलावा वीरेंद्र सिंह सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी जिसने इस मुकाबले में महज 1 पॉइंट कमाया है। ज्यादा रेडर्स चल नहीं रहे। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम भले डिफेंस में कुछ कार्य करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कबड्डी का खेल हो या क्रिकेट का खेल, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि गेंदबाज विकेट चटका के देते हैं, मगर आपको बैटर्स होते हैं जो बड़े रन बना के देते हैं। वैसे ही चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के लिए डिफेंडर जरूर अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो आपके पॉइंट्स है वो मल्टी पॉइंटर रेड के चलते रेडर्स कमाते हैं, जो यहाँ नजर नहीं आए। बिल्कुल सही बताया। डिफेंडर से आपको सहायता मिलती है, लेकिन रेडर्स का कार्य होता है कि वो मैच को पलट दें। 2 से 3 रेड में मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं वो। अब 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकालिए हर रेड पर, तो जो आप मार्जिन देख रहे हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कारनामा किया नहीं चंडीगढ़ चार्जर्स ने, लेकिन जूनियर स्टीलर्स कमाल का कार्य कर रही है। इसके दोनों डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मयंक सैनी की बात करें तो फिर पिछले मुकाबले अच्छे खेले, 12 पॉइंट प्रति मैच के हिसाब से इन्होंने कार्य किया है। टोटल 24 पॉइंट इनके नाम मौजूद पिछले 2 मुकाबलों में। इस मुकाबले में भी बेहतर करेंगे, लेकिन अब बेहतर करने की आवश्यकता है चंडीगढ़ चार्जर्स को। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ टैकल पॉइंट करें। बोनस ऑन है नहीं, लेकिन इस समय गलती करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जल्दबाजी दिखाई है चंडीगढ़ चार्जर्स ने। आपको 1 पॉइंट शायद इजीली मिल सकता था। आप चलते हुए शेर को छेड़ रहे हैं इस समय। और यही होता है जब कोई भी टीम पॉइंट्स के लिए तिलमिला रही होती है, कोई भी टीम ट्रेल कर रही होती है, तो फिर बहुत सारी गलतियां करने के लिए खिलाड़ी व्याकुल रहते हैं। उनकी तैयारी बस यही है कि जहां से भी आए, जैसे भी आए, बस पॉइंट आने चाहिए। डू और डाई की परिस्थिति वहां थी, डू और डाई की परिस्थिति यहाँ है। प्रताप सिंह रेड लगाने के लिए आए हैं इस मुकाबले में। प्रताप ने अपना प्रकोप अब तक नहीं दिखाया, कोई भी पॉइंट अपने टीम के लिए नहीं कमाया। हालांकि एक दफे इन्हें पकड़ा गया है, यानी कि एक रेड अनसक्सेसफुल रही है। अब डू और डाई में जब आखिरी के 10 सेकंड बचे हो तो हर्ष इसके अतिरिक्त कोई और नहीं होता। प्रताप को उठा के जूनियर स्टीलर्स के डिफेंस ने बाहर फेंका है। बोनस का ट्राई किया था प्रताप ने, और जैसे ही बोनस का ट्राई किया है, कमाल का एंकल होल्ड किया है। और ये सीखना चाहिए ना चंडीगढ़ चार्जर्स को। जब डू और डाई जूनियर स्टीलर्स की थी तब आप 5 प्लेयर थे, बोनस उस समय एक्टिव था नहीं, आपको बिल्कुल पीछे खेलना था, बैकलाइन के पास चला जाना था, वहां से टैकल करना था। लेकिन वहां रेडर ने कोई गलती नहीं की, डिफेंस ने गलती की, फायदा मिला वहां पर रेडर को। लेकिन यहां पर 6 का
घर आपको नजर आ रहा है, 6 का नहीं बल्कि 7 का नजर आ रहा है। बोनस लाइन एक्टिव है, बोनस भी नहीं निकाल पाए शायद। बोनस क्लियर Bonus है। plus 1 point, Chandigarh Chargers. Raided out. 1 point, Junior Steelers. Jersey number 6, out of bound. जो सबसे पहला प्रयास किया था मोनू, उसमें बोनस निकाल लिया था, उसमें कोई दौराय नहीं था। और उसके तुरंत बाद जब उनके ऊपर, जैसा कि आपने बताया, एंकल के ऊपर धावा बोला गया तो एक डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड चला गया। यहाँ पुनः देखिए, बोनस निकालने के बाद इनके खिलाड़ी मयंक ने उन्हें होल्ड करने की कोशिश की और फिर जब जूनियर स्टीलर्स की टीम उन्हें डैश आउट करने की कोशिश कर रही थी तो उनके साथ मणिकंदन, जो इस मुकाबले में वैसे भी टैकल के लिहाज से 1 पॉइंट कमा चुके हैं, उन्होंने 1 पॉइंट इस निराले अंदाज में गंवा दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डू और डाई, और डू और डाई में आयुष रेड करने के लिए गए। 4 का डिफेंस यानी कि 2 चेन नजर आ रही हैं। स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। माफ कीजिए, शायद डू और डाई नहीं Last थी। 35 seconds remaining in the first half of the game. Chandigarh Chargers, they are trailing with a score difference of 7 points. Virender Singh, who has just got a single point as far as this match is concerned, and is still struggling in front of the defense of 6, where he can get a possibility of scoring a bonus point. लेकिन अब तक उन्होंने बोनस निकालने की कोशिश नहीं की। पहली बार ऐसा लगा कि बोनस निकालने की कोशिश की थी और उसमें भी सफलता प्राप्त की है। चंडीगढ़ चार्जर्स, यहाँ अवसर है वापसी करने का। बराबरी यदि कर ली गई, या कह लीजिए कि इस रेड पे मयंक सैनी को पॉइंट नहीं दिया तो सेकंड हाफ की शुरुआत सिर्फ 2 अंकों के फासले के साथ होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर चंडीगढ़ चार्जर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ टच पॉइंट ना दें और टैकल पॉइंट की तरफ जरूर देखें। 2 चेन नजर आ रही हैं, बिल्कुल आप बेहतर कर सकते हैं। अगर यकीनी तौर पर इस रेड में पॉइंट नहीं लेकर जा रहे मयंक सैनी, तो फिर अगले हाफ की जो पहली रेड होगी वहां पर डू और डाई रेड होगी जूनियर स्टीलर्स की तरफ से। वो कहते हैं कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। मुझे लगता है कि मेरी परिस्थितियां उससे भी नाजुक चल रही है। 12-18 यानी कि 6 अंकों का ये फासला जो सेकंड हाफ की शुरुआत में हमें दोनों टीम के मध्य नजर आएगा। जूनियर स्टीलर्स क्योंकि लीड कर रही है चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम को इस मुकाबले में वापसी करनी है। अब मयंक सैनी, उनके साथ ऋतिक, ये 2 रेडर जिन्होंने पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल की है। आयुष ने 1 पॉइंट निकाला और कुल मिला के 8 रेटिंग के पॉइंट जूनियर स्टीलर्स को मिले हैं। वहीं चंडीगढ़ की टीम ने भी अपने रेडर्स को चलना शुरू कर दिया है, 7 पॉइंट वहां हासिल किए। फासला जो है दोनों टीम के बीच में वो उनका डिफेंस बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम का जो अनसक्सेसफुल टैकल का आंकड़ा है वो जूनियर स्टीलर्स से थोड़ा ज्यादा बड़े फासले पे होगा, इसीलिए ये टीम फिलहाल 6 अंकों से पिछड़ी हुई है। मोनू, थोड़ी सी पिछड़ जरूर रही है, लेकिन अभी भी 20 मिनट बाकी है इस मुकाबले में। सक्सेसफुल रेड की बात करेंगे तो 19 में से 4 बार सफलता मिली है चंडीगढ़ चार्जर्स को, तो वहीं 20 में से 8 बार सफल रहे जूनियर स्टीलर्स के रेडर। सक्सेसफुल टैकल्स 10 बार प्रयास, 3 बार सफलता, तो 11 बार प्रयास और 7 बार सफलता, ये आंकड़े आम नहीं है। जूनियर स्टीलर्स के डिफेंस ने प्रूव करके दिखाया है कि अगर अटैक किया जाएगा तो यकीनी तौर पर सफलता उनके पास ही रहेगी। डू और डाई में लेकिन पीछे नजर आई चंडीगढ़ चार्जर्स, 2 बार डाली है डू और डाई, दोनों बार अनसक्सेसफुल, लेकिन वहीं जूनियर स्टीलर्स ने 2 बार सफलता डू और डाई में की है। स्टार डिफेंडर की बात करेंगे तो फिर जी मोनू, आज के इस मुकाबले के स्टार डिफेंडर योगेश नजर आए। कुल मिला के 4 पॉइंट उन्होंने कमाए, लेकिन हमारे जो युवा कबड्डी सीरीज के पार्टनर्स है, जो ये संस्करण है युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप इन एसोसिएशन विद फैन कोड, हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के तौर पे यशेल होटल और हयात प्लेस नजर आता है। easemytrip.com पे जाइए, अपने ट्रैवल का प्लान बनाइए। हमारे ट्रैवल रिवॉर्ड पार्टनर भी है और हो सकता है कि आपको बेहतरीन ऑफ वहां मिल जाए। इंडिया वन एटीएम ट्रस्टेड एटीएम पार्टनर्स है। हमारे ऑफिशियल फीजनो पार्टनर के तौर पे साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंसेज। लोकल न्यूज मीडिया पार्टनर के तौर पे प्रधान टाइम्स हमारे साथ जुड़े हैं और भूमानंद हॉस्पिटल जो हमारे ऑफिशियल मेडिकल पार्टनर्स है। जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ रहा है, हमारे पार्टनर्स की संख्या बढ़ रही है और बेहद खुशी होती है इस संस्करण का हिस्सा होके। 2022 वो साल था जब शुरुआत हुई थी, फिर 11 एडिशन पूरे हुए और फिर आया युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप का ये बड़ा मंच, जिसमें 2 पूल्स में कुल मिला के 12 टीम को बांटा गया है। दरअसल ये जो टीम्स आपके सामने आ रही है, चंडीगढ़ चार्जर्स, जूनियर स्टीलर्स, दोनों अलग अलग पूल से है। पूल ए से जूनियर स्टीलर्स है, पूल बी से चंडीगढ़ चार्जर्स है। अपने ही पूल में आप बार बार खेलेंगे। चेतन साहू का जो रेड लगाते हुए इस मुकाबले में प्रदर्शन है वो ज्यादा बेहतरीन नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट कमाए हैं और अब तक जो 20 मिनट का खेल हुआ है उसमें 12 मिनट तक इन जनाब ने मैट को गर्म नहीं किया, बल्कि उस साइड पे जो बेंच लगी है उसकी गर्मी को थोड़ा सा बढ़ाया है। शुरुआत दूसरे हाफ की चंडीगढ़ चार्जर की पहली रेड खाली रही है।
और 12 मिनट अगर आप मैच से बाहर रहेंगे तो यकीन मानिए आपकी टीम पीछे है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी पीछे नहीं है रेडर्स। ऋतिक इस बार कारनामा करके दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये रहेगा कितने पॉइंट लेकर आए। जूनियर स्टीलर्स रेडर्स से 1 पॉइंट यानी कि सिंगल पॉइंट मिला है। अंकित को अपना शिकार बनाया है। डैश आउट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लॉबी का साथ लेकर वहां ऋतिक ने अपने आप को बचाया और मिड लाइन को क्रॉस किया है। पॉइंट ना निकाल के चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम जो पहला नुकसान भुगत रही है वो ये है कि आपकी टीम के लिए रिवाइवल नहीं हो पा रहा है चेतन साहू का। इसीलिए हमने देखा कि 12 मिनट का वक्त पहले हाफ में मैट पे बिताने का अवसर नहीं मिला, सिर्फ 8 मिनट ही मैट पे थे चेतन साहू। दूसरी दिक्कत ये कि जब आप पॉइंट गंवाते हैं तो आप ये और सुनिश्चित करते हैं कि चेतन साहू का रिवाइवल जब आएगा तब तक फासला आपके ओपोनेंट टीम यानी कि इस मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स की टीम कमा लेगी, और वो फासला जो सेकेंड हाफ पे शुरू के वक्त में 6 अंकों का था वो बढ़ के एक महीन सा इजाफा हुआ है, 7 अंकों पे पहुंचा है। सुपर टैकल इज माई ट्रिप की परिस्थिति है। क्या लगता है मोनू, क्या डिफेंडर्स अपना काम कर पाएंगे? डिफेंडर्स अगर अटैक करने जाएंगे तो गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा क्या मयंक सैनी मौका देंगे? अभी तक तो मौका नहीं दिया है। इजीली वहां पर रेड करते हुए नजर आए। उन्हें भी पता है कि इस समय अगर टैकल पॉइंट मिलता है चंडीगढ़ चार्जर्स को तो फिर इज माई ट्रिप सुपर टैकल हो जाएगा और 2 पॉइंट मिलेंगे। समय बिताया, वापस आ गए। उन्हें भी अंदाजा होगा, कैलकुलेशन पहले से कर रखी है। चंडीगढ़ चार्जर्स की जो अगली रेड होगी वो होगी डू और डाई, और वो समय आ गया है। वीरेंद्र सिंह को चलना पड़ेगा डू और डाई पर। अभी तक 2 डू और डाई डाली गई हैं, 2 अनसक्सेसफुल, तीसरी डू और डाई, तीसरी भी अनसक्सेसफुल। इससे पता चलता है कि जूनियर स्टीलर्स स्टील की तरह कार्य कर रही है अपने डिफेंस में। ये जूनियर स्टीलर्स का डिफेंस है या किशोर कुमार का म्यूजिक को थिरकना? जिस रफ्तार से ये डिफेंडर्स लगातार काम कर रहे हैं और जितना एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक जमाने में ऑर्केस्ट्रा बैंड हम सुना करते थे, उसमें इसी प्रकार की एकजुटता नजर आया करती थी। हालांकि चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम इज माई ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति में है, लेकिन यकीन मानिए ऑल आउट के आसार थोड़े ज्यादा है। मयंक के पांव को पकड़ा, सिर्फ एंकल को टच किया, आशीर्वाद नहीं बल्कि पॉइंट मिलेगा जूनियर स्टीलर्स की टीम को, और चंडीगढ़ चार्जर्स के ऊपर इस मुकाबले में दूसरे ऑल आउट का खतरा मंडराएगा। देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल रिस्क लेना था मयंक को। उन्हें पता था कि सिर्फ 2 डिफेंडर हैं कोर्ट के ऊपर। अक्सर हमने देखा है जब 3 प्लेयर होते हैं तब रेडर ज्यादा रिस्क लेता नहीं है, लेकिन जब 2 प्लेयर हो तो उसे लगता है कि यहां से मैं एक डिफेंडर का तो शिकार इजीली बना सकता हूं। तो पिछली रेड में हमने देखा मयंक ने ज्यादा रिस्क लिया नहीं, लेकिन जैसे ही अगली रेड करने के लिए गए वहां पर भी इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी। वहां अटैक करने की तरफ देख रहे थे, आक्रामक नजर आए और इजीली वो 1 पॉइंट लेकर आ गए। उनके पैर को पकड़ा जरूर, लेकिन सफलता नहीं मिली और ऑल आउट का खतरा दूसरे हाफ में एक बार फिर से चंडीगढ़ चार्जर्स के सिर पर आकर बैठ गया है। ये आखिरी योद्धा बचे हुए, रिवाइवल चाहिए, बोनस ले लीजिए। बोनस से सिर्फ 1 पॉइंट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो आपको खाना परोसा गया था, आपको नहीं पता है कि शायद उसमें जहर भी रखा गया है, वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। नहीं, अगर जहर रखा गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि हानिकारक है, इसमें कोई दौराए तो है ही नहीं मोनू। लेकिन जो बोनस निकाल के एक चीज सुनिश्चित कर सकते हैं रेडर, वो ये है कि जो फासला है पॉइंट्स का वो 3 के बनिस्बत सिर्फ 2 अंक का हो। योगेश और उनकी पूरी टीम का सम्मेलन और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट दिखाते हुए चंडीगढ़ चार्जर्स के रेडर को उठाया और पुनः अपनी जगह पे जाने के लिए कहा। सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, प्रताप बाहर जाएंगे चंडीगढ़ चार्जर की टीम के लिए और अब मेट पे संदीप सैनी नजर आएंगे। प्रताप और संदीप दोनों ही स्टार्टिंग लिस्ट का हिस्सा थे, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूट करके बबलू सिंह को बुला लिया गया था और इसीलिए एक और परिवर्तन करते हुए संदीप सैनी को अंदर बुला लिया है, प्रताप को बाहर भेज दिया गया है। क्या ये परिवर्तन कोई पॉजिटिव नोट लेकर आएगा, क्या फलीभूत होगा? देखिए परिवर्तन तो होते हैं पर परिवर्तन से फायदा भी मिलता है और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार तो आयुष सिंह को पूरी तरह से फंसा लिया। और इसी प्रकार के ना आपको परिवर्तन करते रहिए, पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट लेकर आते रहिए। अभी भी बहुत ज्यादा मिनट बची हुई हैं, चार्जर्स चार्ज हो सकती है, यहां से बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। और देखिए अंकित ने जिस प्रकार से फॉलो किया ना वो कमाल का था। उन्हें पता था कि इस समय रेडर थोड़ा सा भूल गए कि पीछे भी उनके डिफेंडर खड़ा हुआ है। हालांकि अंकित से पहले एक और डिफेंडर ने पैरों पर अटैक कर दिया था, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल जब हमें देखने को मिलता है तो वहां पर सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा हो जाता है। आखिरकार चेतन साहू की वापसी हो चुकी है मैट पे, एक लंबे अंतराल के बाद ही सही, लेकिन वो हमें नजर आएंगे। यहाँ पे स्क्वाट किया,
थोड़ा सा बॉडी को बेंड करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को छकाया, हाइट का एडवांटेज नहीं दिया और अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाया। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम को यदि इस मुकाबले में चलना है तो चेतन का होना महत्वपूर्ण। चेतन ने इस मुकाबले में दूसरी बार जसबीर को शिकार किया है। ये एक राइवलरी है जो धीरे धीरे बनना शुरू हो चुकी है मोनू, और अच्छी राइवलरी है और होनी भी चाहिए। जब तक आपकी फाइट नहीं होगी किसी के साथ, आपके अंदर ज्वाला कैसे फटेगी। होता है ना कभी कभी एक प्लेयर आपके सिर पर जाके ना बैठ जाता है, चढ़ जाता है कि मुझे ना बस यही टारगेट करना है, और कभी कभी आपका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन यहां पर आक्रमण तो किया गया है चंडीगढ़ चार्जर्स के द्वारा। बहुत ज्यादा डिफेंडर्स टच में है रेडर के और काउंटिंग जारी है। कोई बड़ी घटना घट गई है। रेडर सेव दिए गए यहां पर फिलहाल तो, लेकिन देखना पड़ेगा 3 या 4 पॉइंट। जूनियर स्टीलर्स की इस रेड ने मेला लूट लिया। चंडीगढ़ चार्जर्स के जितने भी आसार बचे थे इस मुकाबले में वापसी करने के, फासला जो सिर्फ 8 अंकों का था वो संभवतः अब बढ़ के 12 अंकों पे पहुंच जाएगा। गणना अभी भी की जा रही है और यहाँ रिप्ले की मदद से हम गणना करते हैं कि ऋतिक ने क्या कुछ किया है। पहले बोनस निकालने की कोशिश की थी, उसके बाद 2 खिलाड़ी तो टच में आए हैं, फिर मिडलाइन पार हुई है। मुझे लगता है 2 पॉइंट दिए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट तो कंफर्म है। अगर तीसरा टच मिड लाइन को क्रॉस होने से पहले जो पैर को पकड़ता हुआ नजर आया वो, और साथ में क्या वहां पर बोनस पूरी तरह से लिया गया, ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि एक बार ट्राई तो किया था बोनस का। और ये वाली रेड यकीनी तौर पर जूनियर स्टीलर्स के लिए चांदी चांदी करने वाली रेड है। ऋतिक कॉन्फिडेंट है, उन्हें लगता है कि पूरी तरीके से उन्होंने मिडलाइन को पार किया और एक क्षण के लिए लगा तो यही। 2 points, junior steelers, जैसे नंबर 10 and 1 out. रेडर सेफ भी दिया गया है, 2 अंक भी दिए गए हैं और चंडीगढ़ चार्जर की टीम से 2 खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि सनी और अंकित दुल बाहर। आज के इस मुकाबले में 3 अनसक्सेसफुल टैकल इस वाले प्रयास से पहले ही अंकित दुल कर चुके थे। ये उनका चौथा अनसक्सेसफुल टैकल था। हालांकि इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट आज के इस मुकाबले का हमें नजर आया। पहला नहीं, दूसरा प्रयास नहीं, लेकिन तीसरे प्रयास में ऋतिक ने मिडलाइन को पार करके दिखाया और अपनी टीम के लिए ये फासला अब 10 अंकों का बना दिया है। 13.5 मिनट के आसपास का वक्त बताया। चेतन साहू अभी भी मैट पे मौजूद है, डुबकी लगाने के प्रयास में खूब डूब गए। डुबकी लगानी है तो हरिद्वार में आप मौजूद है, गंगा नदी पे जाइएगा, लेकिन समय 6 बजे के बाद का होना चाहिए। उससे पहले सारा फोकस कबड्डी के मैट पे। और जूनियर स्टीलर्स इस समय वही कार्य कर रही है। पिछले 2 मुकाबले उठाकर देखिए, अगर इनके डिफेंडर के विरुद्ध किसी रेडर ने डुबकी लगाने की कोशिश की है युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप के इस मंच पर, तो वो डुबकी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। वो आपने सही समय बताया, आप 6 बजे 7 बजे जाइए, हर की पौड़ी पर जाइए और वहां पर डुबकी लगाइए और आराम से 1 नहीं 2 नहीं 10 लगाइए, लेकिन यहां नहीं चलेगी। जूनियर स्टीलर्स के विरुद्ध आप डुबकी नहीं लगा सकते। क्या कारण रहा है आज के मुकाबले में? हमने चेतन को जब देखा था मैट पे तो वो लगातार लेफ्ट रेड लगा रहे थे, हालांकि राइट रेडर है अपने टीम के लिए और ऐसी कोई मजबूरी भी नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि जसबीर या कोई और खिलाड़ी ने उनको लगातार शिकार किया हो, बार बार पकड़ा हो। हालांकि पकड़े भी गए का मतलब ये नहीं कि एक परफेक्ट राइवलरी, या रास्ता नहीं मिलेगा बबलू सिंह को, ट्रैप हो गए। इससे पहले कि जो सिग्नल है उस पे येलो लाइट आती, वो पहचान पाते कि ये लाइट कब ग्रीन होगी, पुनः रेड लाइट आ गई। ऐसा मेट्रो सिटीज में होता है, अब हरिद्वार में भी होना शुरू हो चुका है। रेडर देखिए, अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहते थे, यहाँ पर टर्न कर लिया था, एक डिफेंडर को पूरी तरह से धक्का दिया, बच गए, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल, कहते हैं ना कितने आदमी थे। तो भैया जूनियर स्टीलर्स के पास बहुत ज्यादा डिफेंडर्स थे और सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे इंक्लूड थे वहां पर, और अंततः आते आते वहां टैकल पॉइंट मिल गया। एक बार फिर से यहाँ पर चंडीगढ़ चार्जर्स के पास है इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार बार आ रही है, सफलता ज्यादा मिली नहीं। आयुष सिंह इस बार कारनामा करके दिखा रहे हैं, चाहे आयुष कमेंट्री बॉक्स में हो या आयुष कबड्डी के मैट पर हो, जलवे और चर्चे जारी रहेंगे। जितने भी दर्शक ये मुकाबला फैन कोड के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें पुनः बता दूं कि किसी भी प्रकार की जूस या किसी भी प्रकार की ट्रीट की बात मैंने मोनू के साथ नहीं की है। जो उन्होंने कहा इससे मेरा कोई तारुक नहीं है और ये सिर्फ हंसी मजाक का बहाना ढूंढते हैं। यही इनकी एक बड़प्पन है, इस वजह से ये हमेशा अपने साथी का
जो मोराल है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ स्कोर के डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम के सामने। उन्हें इस संस्करण में अपनी दूसरी हार संभवतः, अब मोनू ये कहना गलत नहीं है कि नजर आना शुरू हो चुकी होगी। तीसरा ऑल आउट हो सकता था, हालांकि ऋतिक जो कि अपनी टीम के रेडर है वो तिलमिलाए, और यदि ऐसा करेंगे तो पॉइंट अपने ओपोनेंट को देंगे और अगली बार अवसर आएगा ईज माई ट्रिप सुपर टैकल का। अवसर आ रहा है, अवसर को आपको अपने पक्ष में रखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सरप्राइज टैकल करना चाहते थे और मुझे नहीं लगता है कि इस समय जरूरत थी। आप वापस भी जाने देते, बोनस आपने ऑलरेडी दे दिया है, आप वापस कर सकते थे। इजीली वहां पर एक डिफेंडर कोर्ट के ऊपर होता और आप इजीली टच पॉइंट लेकर आ सकते थे। मयंक सैनी फिर से यहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं। अभी तक तो ज्यादा उन्होंने प्रयास किया नहीं, तकरीबन 15 सेकंड निकाल दिए। बाकी की 15 सेकंड में कितना कुछ प्रयास करेंगे या फिर वापस जाएंगे, अपने डिफेंस पर ही भरोसा रखेंगे कि वो हमें टैकल पॉइंट निकाल कर दें। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ चार्जर्स के पास, लेकिन इस बार मयंक ने कोई मौका दिया ही नहीं। हम पिछले रेड पर चर्चा कर रहे थे कि जब दो डिफेंडर कोर्ट के ऊपर होते हैं तब रेडर ज्यादा आक्रामक हो जाता है, लेकिन इस बार संयम दिखाया है, वापस आ गए। वीरेंद्र सिंह जिन्होंने कुल मिला के इस मुकाबले में 5 पॉइंट निकाले हैं, 3 बोनस अपनी टीम के लिए चुराए हैं, 2 खिलाड़ियों को बाहर भगाया। इस बार जसबीर के सामने क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फुस की धमकी थी। किसी प्रकार का पॉइंट के लिहाज से कोई नुकसान जूनियर स्टीलर्स की टीम को होगा नहीं। क्या टाइम आउट कॉल किया? टेक्निकल पॉइंट चंडीगढ़ चार्जर्स। लेट एंट्री, टेक्निकल पॉइंट चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम को। सब कुछ सही चल रहा है तो जूनियर स्टीलर्स के बीच में कंफ्यूजन कैसा? चाहे मयंक चले जाएं या उनके साथी खिलाड़ी इनके लिए रेड लगाएं, कोई बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है। 5 सुपर टैकल्स की परिस्थितियों के हिसाब से 4 स्ट्राइक रेट, 4 स्टार का डिफेंस है, और क्यों है वो फिर सिद्ध कर दिया। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल बड़ी आसानी से, मयंक बाहर। रेडर 2 डिफेंडर्स। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल ऑन था और ऐसा प्रतीत हुआ है कि सफलतापूर्वक ईज माई ट्रिप सुपर टैकल कर लिया है चंडीगढ़ चार्जर्स ने। लेकिन अभी कुछ सवाल जवाब, सवाल जवाब तो शायद वही है कि क्या एक डिफेंडर बैकलाइन को पहले क्रॉस कर चुका था और वो टैकल करते समय शामिल है। यदि तो वीरेंद्र ने पहले एंड लाइन को पार कर लिया और उसके बाद वो इस टैकल में इन्वॉल्व है तो रीडर को सेफ देते हुए ये 1 पॉइंट मिल जाएगा जूनियर स्टीलर्स की टीम को। यदि उन्होंने एंड लाइन को पार नहीं किया, सिर्फ वहीं आसपास मंडरा रहे थे और फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो फिर ये बनती है ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति। इस एंगल से तो ऐसा लग नहीं रहा, अब तक तो कम से कम लग नहीं रहा कि एंड लाइन को पार किया है। संभवतः यहाँ कोई टर्न हो, वो भी इस एंगल से पहचानना बहुत मुश्किल है। चंडीगढ़ चार्जर्स। और ऑन फील्ड एम्पायर ने जो निर्णय लिया है वो ये कि ईज माई ट्रिप सुपर टैकल चंडीगढ़ चार्जर्स के तबके में एक और चांद जोड़ देगी और मयंक को बाहर जाना होगा। मयंक चले गए रिव्यू लेने के लिए। देखिए, रिव्यू तो आप जरूर कर रहे हैं, टीवी एम्पायर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि ज्यादा लाइन के पास गए ही नहीं। क्लोज जरूर थे लेकिन बैक लाइन को पार नहीं किया था। और मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी से आंकड़ों को बदल दीजिए। जो आपने 5 सुपर टैकल दिखाए उनको 6 में तब्दील कर दीजिए। हमारे पास एक लग्जरी है कि हम रिप्ले में कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड एम्पायर के पास लग्जरी है कि वो अलग अलग एंगल से रिप्ले दे सकते हैं, लेकिन मोनू दाद देनी पड़ेगी हमारे ऑफिशियल्स की, जिन्होंने लाइव एक्शन को पहचानते हुए अपना निर्णय सुनाया। अब वो जो भी है वो पुनः थर्ड एम्पायर कंफर्म कर देंगे। यहां थोड़ा सा क्लोज हो सकता है। जो एक पैर नजर आ रहा है डिफेंडर का, वो लाइन के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन नियम तो ये कहता है कि लाइन के ऊपर है तो आप सेफ हैं। अगर लाइन क्रॉस हो रही है तो फिर आपको आउट करार दिया जाएगा। थैंक यू सर। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स चंडीगढ़ चार्जर्स। जूनियर स्टीलर, योर रिव्यूज और नो मोर रिव्यूज। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति को कन्वर्ट करते हुए चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने ना सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम को पॉइंट मिलेंगे, बल्कि ये और सुनिश्चित किया कि ऑल आउट का खतरा जो मंडरा रहा था वो कम से कम कुछ रन के लिए सही, लेकिन इस टीम से दूर जाएगा। अपने बॉडी के बैलेंस को वीरेंद्र ने लगातार बनाए रखा। हालांकि एक स्टंट, जैसा कि मोनू ने बताया, उनका बायां जो जूता था वो ऐसा लगा कि
एंड लाइन को पार कर जाएगा, लेकिन तब तक उनके साथी खिलाड़ी ने डबल एंकल के ऊपर धावा बोलते हुए इसको निश्चित किया कि इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट हमें आए नजर। 21 पॉइंट हैं चंडीगढ़ चार्जर्स के पास, 22वां पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, उससे पहले जूनियर स्टीलर्स अपने टैकल पॉइंट में इजाफा कर लेगी। चंडीगढ़ चार्जर्स सुपर टैकल कर रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, अच्छा खेल रही है, लेकिन जब आप रेड करने के लिए जा रहे हैं तब वहां लड़खड़ा रहे हैं। वॉक लाइन के पास जाकर ये टैकल पॉइंट निकाला है, दोनों पैर पर धावा बोल दिया और वो पॉइंट इजीली मिल गया है। और सुपर टैकल की बात करेंगे तो फिर 2 सुपर टैकल कर चुकी है आज के मुकाबले में। 9 बार वो अपॉर्चुनिटी, 10वीं बार अपॉर्चुनिटी है। क्या इस आंकड़े में कुछ बदलाव होंगे? क्या तीसरा सुपर टैकल हमें देखने को मिल रहा है? ओवरऑल 7वां सुपर टैकल देखने को मिल रहा है ऋतिक के ऊपर। दोनों प्लेयर ऐसे जकड़े हुए, पकड़े हुए कि शायद 1% भी आपके पास मौका नहीं अपने आप को बचाने के लिए। बैक टू बैक ईज माई ट्रिप सुपर टैकल किया है चंडीगढ़ चार्जर। सिर्फ एक ही कार्य बेहतर कर रही है और वो है ईज माई ट्रिप सुपर टैकल। अंकित दुल और सनी ऑन द मनी। पहले शुरुआत की थी अंकित दुल ने, फ्रंटल ब्लॉक करना चाह रहे थे लेकिन सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी का हाथ पकड़ पाए। उसके बाद सनी आए, सनी ने लोअर बॉडी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि ऋतिक बाहर ना जा पाए। हालांकि जिस प्रकार से हाथ पकड़ा था, किसी प्रकार की बड़ी चोट भी लग सकती थी वहां रेडर को, तो थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम को हम मानते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से बहुत बड़ा फासला है, ये 8 अंकों का फासला, जिससे पीछे फिलहाल जूनियर स्टीलर्स से नजर आ रही है चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम। और इस डैश आउट के चलते संभवतः कोई डिफेंडर भी बाहर गया हो। जूनियर स्टीलर्स। देखिए चेतन को पहले हाफ में 12 मिनट बाहर रखा गया है और दूसरे हाफ में भी चेतन को चलने नहीं दिया गया है। चेतन को पूरी तरह से चेतावनी दे रखी है इस समय जूनियर स्टीलर्स ने कि आपके आंकड़े यकीनी तौर पर बेहतर हैं, लेकिन आपका सामना इस समय जूनियर स्टीलर्स से हो रहा है, तो माफ कीजिए, वो आंकड़े आपके बेहतर तो शायद हम नहीं होने देंगे। नाम में जूनियर है लेकिन काम पूरा सीनियर वाला करके दिखाएंगे। स्टीलर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। कमाल की टीम है। 7 मिनट का खेल बचा है इस मुकाबले में, तो युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप के नियमों के अनुसार वक्त है स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का। 1 मिनट तक ज्ञान की गुट्टी किस पे पड़ेगी किस पे भारी, देखते हैं। लो बढ़िया हो इसे नहीं जमका। ना या लूज मत करो ना, कभी लूज करे या बॉल से ट्राई तैयार रहना टाइट पूरा, ठीक है। अंदर बेटे एडवांस ट्राई नहीं, ठीक है। आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से यहाँ तैयार रही। मंकी मरवा तुम्हारा का ना, हाँ ध्यान रखना। हाँ पहली एक चीज और पहली तू लेगा से, दूसरी इसको से फाइनल तेरी डलवाएंगे। और सुन एक बात, सुन एक चीज है, ओ ज्यादा नीचे मारा ऊपर से पकड़ेगा, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। Some great coaching lessons as far as the team of Junior Steelers is concerned. The coach was very clear that you should not go and play an easy game of kabaddi. Yes, they are leading at the moment, but they cannot take their opponent in a slighter downward way, and that's the only reason कि यहाँ मयंक को कह दिया गया है कि वो ऊपर से आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। You need to bend down and come back in your own camp. Junior Steelers के पास में फासला है 9 अंकों का है, 6.25 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम ने इस मुकाबले में वैसे ही सुपर टैकल्स पे सुपर टैकल्स दागते हुए ईज माई ट्रिप से भी इजी कर दिया है इस मुकाबले को, लेकिन एक और ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति आ चुकी है। पिछली बार भी डिफेंस करने के लिए यही 2 खिलाड़ी थे, एक तरफ सनी, दूसरी तरफ अंकित। मयंक सैनी को पता है जब तक डू और डाई की परिस्थिति नहीं आएगी चंडीगढ़ चार्जर्स के शेरों को छेड़ेंगे नहीं। सनी क्विक रेड डालते हुए नजर आए, जाते पहले अपने रेड को वैलिड किया, वॉकलाइन को क्रॉस किया, एक पैर हवा में दूसरा पैर वॉकलाइन के अंदर वापस आ गया। उन्हें भी पता है कि हमारी टीम ने बैक टू बैक 2 ईज माई ट्रिप सुपर टैकल किए हैं, तो यानी कि वो हैट्रिक की तरफ भी देख रहे होंगे कि क्यों ना एक और कर लिया जाए। आयुष सिंह अगर इस रेड पर प्रयास नहीं करते हैं, पॉइंट लेकर नहीं आते, तो यकीनी तौर पर अगली रेड डू और डाई होगी। लेकिन चंडीगढ़ चार्जर्स को अगली रेड पर मेरे हिसाब से तो पॉइंट लेकर आना चाहिए, क्योंकि फिर परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन समीकरण बन चुके हैं अब। सनी गए रेड करने के लिए और यकीनी तौर पर वो वॉकलाइन को क्रॉस करेंगे, लेकिन इस समय हाई लाइन डिफेंस हमें देखने को मिल रहा है। वो
ये चाह रहे हैं कि इस रेड पर शायद रेड को वैलिड ना करने दिया जाए, लेकिन सनी ने इजीली वो रेड वैलिड किए, वापस आ गए और अब आ गई है डू और डाई। तो एक तरफ है डू और डाई, दूसरी तरफ है इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, और ये क्या हमें हैट्रिक देखने को मिल सकती है। 6 डू और डाई, 6 बार सफलता, 100% डू और डाई सक्सेस रेट हमें देखने को मिला है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शायद सुपड़ा साहब 4 points, Junior Steelers. 2+2, दो डिफेंडर जो हर बार आपको अच्छा करते हुए दिखा रहे थे, पिछली 2 बार वो कर चुके हैं ईज माई ट्रिप सुपर टैकल, और इस बार मयंक सैनी ने 2 के 2 डिफेंडर्स को अपने टच में लिया और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको गिफ्ट मिलता है ऑल आउट देने पर वो मिल गया है, और ओवरऑल तीसरा ऑल आउट दे दिया है चंडीगढ़ चार्जर्स को। Time out, Junior बैक किक Steelers. एग्जीक्यूट किया गया था सनी के ऊपर, उसके बाद जाते जाते अंकित धुल की जर्सी को टच करते हुए उसकी क्वालिटी को महसूस किया और पहचान लिया कि ये तो 4 अंक देने वाली जर्सी है। हाँ, डू डाई भी है और टाइट रहना बस, बुक नहीं चली जाए, एक बॉल चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट बाकी है। हाँ, ठीक है मनी, नो एडवांस ट्राई, ओके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहले मत बोलिए इसको, भाई मारेंगे, ठीक है ना। सेट हो गए बेटे, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। Out, 22 in. जूनियर स्टीलर्स के कोच साहब ने सीधे सीधे कहा है कि आपको एडवांस तो करना ही नहीं है, बोनस जा रहा है, जाने दीजिए। जब आपको लगे कि आप बेहतर कर सकते हैं तभी आप टैकल के लिए जाइए। ऑल आउट हुई है और आते ही डू और डाई रेड चंडीगढ़ चार्जर्स की आ गया चेतन साहू। इनके ऊपर बहुत ज्यादा फैंस की नजरें थी, बहुत ज्यादा समय इन्होंने बाहर दिया है, मैट पर दिया नहीं, और अब ऐसी परिस्थितियों में रेड करने के लिए आए। यहाँ से खाली जाने की उम्मीद है ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं लेकर जाते हैं तो फिर से बाहर का रास्ता ही देखते हुए नजर आएंगे। लीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, समय निकल गया था, कोई मौका नहीं चेतन साहू के पास अपने आप को बचाने के लिए। 1 पॉइंट मिल गया जूनियर स्टीलर्स को, और इस बार तो कोई ज्यादा प्रयास किया नहीं था स्टीलर्स ने, इजीली वो पॉइंट उनके पास आ गया है। Red. तो ये मुकाबला महज औपचारिकताओं का रह चुका है। कोई भी इंजरी होती है तो साई इंस्टीट्यूट जो हमारे फिजियोथेरेपी पार्टनर हैं उनको हमने लगातार आते हुए देखा है। अच्छी चीज़ ये है कि पिछली बार चंडीगढ़ चार्जर्स के रीडर को किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई नहीं थी। ऋतिक, जूनियर स्टीलर्स, सबका जो सोचने का तरीका है वो सेम ही होने वाला है यहाँ से। वो ये कि जब तक डू और डाई की परिस्थिति ना आए, रेड के ऊपर ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ से चंडीगढ़ चार्जर्स के ऊपर एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करना तो बेहद मुश्किल है। 6 रेड पॉइंट निकालने वाले ऋतिक अभी सिर्फ अपने समय को यूज करेंगे और आखिरी के जब 3-3.25 मिनट का वक्त बचेगा वापस अपने खेमे में चले जाएंगे। अभी तक एक भी मुकाबला गवाया नहीं है। जूनियर स्टीलर्स ने पहला मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, दूसरे मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की और तीसरे मुकाबले में बड़ी जीत करने के लिए एकदम से तैयार, टूट पड़े एकदम से जूनियर स्टीलर्स के ये शेर। Wait. हाँ, थोड़ा सा तो इम्प्रेस किया है वीरेंद्र ने, Substitution, Junior Steelers. लेकिन जिस Jersey number तरीके 4 से out, 12 in. योगेश ने ये बैकफुल इनिशिएट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ 2 खिलाड़ी, 2 कवर्स के खिलाड़ियों ने चलता किया वहां रेडर, और इस मुकाबले को बेहद आसान सा बना दिया। चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम इस संस्करण में अपनी दूसरी हार के लिए होगी तैयार, और जूनियर स्टीलर्स का ये खेमा जिसने इस संस्करण में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया वो अभी भी अपने विजय रथ पे जारी रहेगा। मयंक सैनी को बाहर बुला लिया गया है, हालांकि रेड लगाने के लिए आयुष आए हैं। कुल मिला के 2 पॉइंट आज के मुकाबले में इन्होंने कमाए हैं। बैक किक लगाना चाह रहे थे लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन की चेन पे, लेकिन कोई भी चेन ऐसे कहते हैं कि उतनी कमजोर है जितनी उसकी सबसे मजबूत कड़ी, और इसीलिए इस कड़ी में ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। परस्यूट पे आ चुके हैं बबलू, वापस गए हैं, बुलाएंगे शायद डू और डाई के लिए। डू और डाई पर आप बुला भी लेते हैं, आपने मान लो 1 पॉइंट निकाल भी लिया, अब 1 पॉइंट से कुछ होगा नहीं, आपको तो स्ट्रगल करना है अपनी रेडिंग के दौरान। आपको टच पॉइंट चाहिए और 1, 2, 3 टच पॉइंट अगर आपको मिलती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यार डू और डाई 3 बार सफलता जरूर मिली है, लेकिन चौथी बार सफलता नहीं मिलेगी। इस बार तो सक्सेस मिली है चंडीगढ़ चार्जर्स के डिफेंडर्स को, और उन्होंने वही जाल बिछाया था कि हम डू और डाई पर खिलाएंगे और इजीली वो पॉइंट निकालेंगे। किक लगाई, उसके बाद सामने से प्रहार किया, जंप लगाई, और इस बार तो प्लेन को पूरी तरह से क्रैश कर दिया गया है। Chandigarh Charger, they're just looking to narrow down the margin of the loss, that's for sure. They have scored 9 points as far as their tackle is concerned. They have got 12 points with the help of the Raiders. Yogesh Shishpal has got a high fight today in the game, और एक और का इजाफा करने की कोशिश साहिल कर देंगे। एंकल को पकड़ा, लॉबी की तरफ घसीट दिया रेडर को पूरी तरीके से, जैसे पूरे मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स ने घसीटा है चंडीगढ़ चार्जर्स के खेमे को।
ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके सामने एक लजीज खाना रखा हुआ है, प्लेट सजी हुई है, सर्व कर दिया गया है, बस आप खाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले आपके सामने से ना वो थाली हटा दी किसी ने। वहां साहिल खुद अकेले गए और ऐसा लगा कि शायद यहां से कर सकते हैं वो मिड लाइन को क्रॉस, लेकिन नहीं किया। एक थोड़ी सी सांस उन्होंने जरूर ली और उसी बीच उन्होंने पकड़ के पीछे खींच दिया। हाथ आया, मोनू, एक मुंह नहीं सवाल लगा। है, 7 करोड़ का सवाल है। वो सवाल ये है कि जो खाने की थाली रखी हुई थी, जो इनके सामने से निकाल ली गई, क्या उसमें जहर था या नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन वो 1 point. खा लेते तो शायद Chandigarh कुछ उन्हें Chargers. फायदा जरूर मिलता, लेकिन खाने नहीं दिया। इस बार वो जहर नहीं रखा गया था, वो कह रहे थे कि आप खा के देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। डबल एंकल के ऊपर अंकित दुल का दावा। मिड लाइन एक बार फिर हाथ तो आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि बू नहीं लगी, बस वैसा ही सूरत हाल हमें नजर आया था। तो बैक टू बैक पॉइंट निकालने की कोशिश में चंडीगढ़ चार्जर की टीम इस हार के मार्जिन को कम करने की कोशिश कर रही है। तो साहिल नरवाल इस मुकाबले के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट कर लिया है। कुल मिला के he has scored 5 टैकल पॉइंट्स इन दिस गेम। 5 का डिफेंस था, सेंटर पे मौजूद खिलाड़ी को टच था और लगातार ये चौथा पॉइंट था चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए। Red. अंतिम के 5 मिनट का वक्त इस मुकाबले में बचा है। आयुष सिंह बस अपने कैंट को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डू और डाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम उठाना समझदारी का कार्य नहीं है। दूसरी तरफ से चेतन संभवतः परस्यूट लगाने के लिए तैयार है। आयुष अंदर गए अपने खेमे में, चेतन आ गए रेड लगाने के लिए। 4 का अगर बोनस नहीं मिल सकता, जोखिम उठाना सिर्फ और सिर्फ जो हार का मार्जिन है उसको कम करना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो हार का मार्जिन आप कम करें तो टॉप 4 में बने रहने की संभावनाएं बनी रहे। चेतन धावा बोला गया। साहिल ने बैक पकड़ी, लेकिन उससे पहले इनिशिएशन किसी खिलाड़ी का एंकल पे दावा बोल के था। चेतन को चेतावनी पहले ही दे दी गई होगी कि आज तो आपको नहीं चलने दिया जाएगा। Red. साहिल ने जिस प्रकार से फॉलो किया था वो कमाल का था, लेकिन उससे पहले आपने सही बताया कि किसी ने दावा बोल दिया उनकी थाइस पर और इजीली वो एक और पॉइंट मिल गया। चेतन आज ज्यादा कुछ कारनामा कर नहीं पाए और चेतन के साथ साथ बाकी के रेडर्स और डिफेंडर्स वो भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 27 पॉइंट नजर आ रहे हैं, वहीं 40 पॉइंट जूनियर स्टीलर्स के नाम। यकीनी तौर पर ये आखिरी रेड, क्योंकि टाइमर इस समय हमें 0 पर नजर आ रहा है। ऋतिक इस आखिरी रेड को लगाएंगे और ये बच जाएगी फाइनल विसिल और जूनियर स्टीलर्स तीसरे मुकाबले में भी अपने नाम जीत करती हुई। पहला मुकाबला टाई पर खत्म हुआ, दूसरे मुकाबले में बड़ी जीत, तीसरे मुकाबले में बड़ी जीत, यानी कि अभी तक उन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा है और कह दिया है टाइगर जिंदा है। जूनियर स्टीलर्स बिल्कुल स्टील की तरह कार्य करती है, हर एक मुकाबले में कमबैक करती है, पीछे चली जाती है तो फिर ज्यादा प्रेशर लेती नहीं है, इजीली कमबैक करके दिखाती है। और जो कोई भी मुकाबला गंवाने का सिलसिला इनके पास था नहीं, वही सिलसिला जारी रहेगा। जो विनिंग स्ट्रीक है वो अभी भी जारी है। हालांकि एक मुकाबला टाई खेला था और इस जीत के साथ जयपुर पिंक कप्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पे पूल ए में आ जाएगी जूनियर स्टीलर्स की टीम। और ये बहुत बड़ा लम्हा होता है हर टीम के लिए टू बी एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। दे हैव प्लेड हार्ड, they have played some good defenders, some good attacking skills out as well. 2 players scoring a high five in a single game, which is not an easy task for sure. और इसी के चलते एक बड़ा फासला, the difference was of 13 points। 13 अंकों के फासलों से इस मुकाबले को जूनियर स्टीलर्स ने जीता है। चंडीगढ़ चार्जर्स को कहा कि दोबारा घर जाइए, चार्ज होकर वापस अगले मुकाबले के लिए आइए और आपसे आमना सामना संभवतः अगले राउंड में होगा, क्योंकि अलग अलग पूल से जब टीमें आती है सिर्फ एक ही बार टकराती है। 13 पॉइंट थे रेड लगाते हुए चंडीगढ़ चार्जर्स के पास, तो रेडिंग में 15 पॉइंट निकाले। फासला इस मुकाबले में जो था वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पॉइंट का था, जो बड़ा 6 अंकों का रहा है और उसी के चलते ऑल आउट करने के ज्यादा अवसर भी जूनियर स्टीलर्स को मिले। 3 दफे चंडीगढ़ चार्जर्स को ऑल आउट थमाया। एक्स्ट्रा का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त 1 पॉइंट था वो जरूर चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम को मिलेगा, क्योंकि 2 तो जूनियर्स को भी मिले हैं। सुपर टैकल 3 आए और वो कमाल के इज़मा ट्रिप सुपर टैकल की जो परिस्थितियां थी वो चंडीगढ़ चार्जर्स ने बनाई है। मोनू, चंडीगढ़ चार्जर्स ने सिर्फ एक ही चीज से इंप्रेस किया है, वो थे 3 सुपर टैकल। उसके अलावा ज्यादा कुछ उन्होंने प्रभाव डाला नहीं। 38 में से 7 बार सफलता चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए, तो वहीं पर 39 में से 13 बार सफलता मिली है जूनियर स्टीलर्स को, लेकिन 24 में से 17 बार सफलता टैकल में मिली है। सक्सेसफुल टैकल की हम इस समय बात कर रहे हैं तो 22 में से 8 बार चंडीगढ़ चार्जर्स। डू और डाई 4 बार डाली गई है, चंडीगढ़ चार्जर्स की तरफ से 1 भी बार सफलता मिली नहीं, तो वहीं 4 बार डू और डाई जूनियर स्टीलर्स की तरफ से भी डाली गई है। पहली 3 डू और डाई सफल रही, चौथी डू और डाई में
चंडीगढ़ चार्जर्स के डिफेंस ने कारनामा किया और अनसक्सेसफुल रेड हमें देखने को मिली जूनियर स्टीलर्स की तरफ से। बोनस पॉइंट की बात करें तो फिर 6 बोनस चुराएं, और बोनस का सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको पॉइंट तो मिलता है लेकिन आप रिवाइवल नहीं दिला पाते हैं, और पहले हाफ में आप अपने स्टार प्लेयर साहू को रिवाइवल नहीं दिला पाए। 12 मिनट वो पहले हाफ में बाहर रहे और दूसरे हाफ में भी तकरीबन 12 से ज्यादा मिनट ही रहे होंगे अंदर, क्योंकि जब जब रेड करने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो वही बात करेंगे हम चंडीगढ़ चार्जर्स के प्लेयर्स की, तो फिर वीरेंद्र सिंह के नाम आपको 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 45% रेट स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। उसके बाद अगर कोई प्लेयर है चेतन साहू, तो इनके नाम भी सिर्फ 5 प्लेयर नजर आ रहे हैं। उम्मीद की गई थी कि कम से कम 15 पॉइंट निकालेंगे, लेकिन आज इस मुकाबले में फीके नजर आए। चंडीगढ़ चार्जर्स चार्ज नहीं हो पाई इस मुकाबले में। संदीप ने साथ देने की कोशिश की और वो कोशिश कुछ इस प्रकार से थी कि 100% हमें उनका औसत दिखाई दिया है। 4 में से 4 बार सफलता उन्हें मिली। दूसरी तरफ मयंक सैनी उतना जबरदस्त प्रदर्शन आया नहीं जिसकी आस थी। कुल मिला के 8 पॉइंट उन्होंने निकाले। ऋतिक के नाम आज 6 पॉइंट आए हैं, जिनमें से 1 बोनस पॉइंट भी इन्होंने क्लेम किया था। रेड लगाते हुए 6 पॉइंट निकालना ऋतिक का अपने टीम के लिए एक दूसरा रेडर होते हुए उभरना कमाल का कार्य था। लेकिन साहिल नरवाल और योगेश चहल 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज के मुकाबले में अपना हाई फाई कंप्लीट किया है। द बेस्ट थिंग अबाउट साहिल नरवाल वाज हिज स्ट्राइक रेट। इट वाज 100% टैकल स्ट्राइक रेट फॉर हिम टुडे। ही परफॉर्म ट्रेमेंडसली वेल। जब जहां जैसे अवसर मिले साहिल नरवाल को, ही ensured that he'll score points for the team. On the other hand, Yogesh Chahal with just a single unsuccessful tackle getting another high five for the team with a strike rate of 83%. ये आंकड़े तो ना जाने शायद नर्सरी या एलकेजी में मुझे अंक तालिकाओं में नसीब हुआ करते थे। हालांकि मोनू, आपके आंकड़े मुझे लगता है कि संभवतः 10वीं 12वीं में भी बेहतर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं इस बार तो आप। मेरा तो बिल्कुल एवरेज रहा है, 60-65 बस इतना ही रहता था, इससे ज़्यादा कुछ आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया जूनियर स्टीलर्स के जो आंकड़े वो बेहतर हैं, 83%, 100% ये हमने देखे। हालांकि एक प्लेयर चंडीगढ़ चार्जर्स की तरफ से भी थे, उनके भी हमें 100% आंकड़े देखने को मिले। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मणिकंदन का 67% टैकल सक्सेस रेट नजर आया है। 4 पॉइंट इनके नाम, 4 टैकल पॉइंट इनके नाम है। और जूनियर स्टीलर्स का सबसे बड़ा और मजबूत जो डिपार्टमेंट है वो उनका डिफेंस है। टैकल पॉइंट अच्छे खासे निकालते हैं वो। चलिए, क्योंकि जूनियर स्टीलर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीता है, लिए चलते हैं आपको नवीन के पास जो तैयार है जूनियर स्टीलर्स के कोच के साथ। Thank you so much, guys. And yes, I do have the man who will be really happy in the UA All-Stars Championship, because Junior Steelers haven't lost a match yet. And they are on top of Pool A as of now, because their score difference is better and the best than everybody. 46 points on the score difference. And I have to, with me, Dilbag Singh. Dilbag Singh जी, बहुत मुबारक। आपके टीम मतलब टॉप पे पहुंच चुकी है उस पुल में अभी तक। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत मतलब स्टार्टिंग से खटक रही थी कि अगर आप मणिकंदन नेसमणि और मणिकंदन सुडलमणि दोनों को रखे हो टीम में, मणिकंदन नेसमणि और सुडलमणि दोनों अच्छे खेलते हैं, yes, उनको हटा के, मतलब मणिकंदन सुडलमणि को आप हटा के योगेश चहल का बिठाना, वो डिसीजन कहाँ से आया आपको? सर वो जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं योगेश, और थोड़ा है जो मणिकंदन का था थोड़ा फिटनेस का इशू था। अच्छा, हाँ, इस वजह से थोड़ा उसको रेस्ट के लिए बोला गया है, और योगेश ने प्रैक्टिस में अच्छा करके दिखाया और यहाँ मैच में भी अच्छा कर रहा है सर वो। बढ़िया। लेकिन मणिकंदन नेसमणि के साथ उसका कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा, क्योंकि वो तमिल बात करता है या हिंदी में बात करता है, तो वो कैसे बैठा? सर वो वहाँ प्रो कबड्डी लीग में रह के सीख गया हिंदी। अच्छा, यही सुनी है मणिकंदन नेसमणि हिंदी सीख ली। बढ़िया। लेकिन आपके कॉर्नर भाई क्या खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। साहिल नरवाल और आपका कवर्स बहुत तगड़ा है। लेकिन आपके रेडर मयांक सैनी एक बार मतलब क्या होता है, वो पूरे सारे रेड नहीं लगा रहता है, उनको आप सेव कर रहे हो, थोड़ा आप रुक के खिलवा रहे हो मयांक सैनी को, क्या कर रहे हो? क्योंकि पूरा उनका सुपर 10 बनने का मौका है, लेकिन वो जाने रहे हैं। सर हम तीनों रेडर के साथ खेलना चाहते हैं, तीनों को कॉन्फिडेंस में लेकर आने आते हैं, तीनों को चांस देना चाहते हैं हम, ताकि आगे के मैचों के लिए हमें पता चले अब एक ही रेड कंटिन्यू रेड इतनी लंबी टूर्नामेंट में कैसे कर पाएगा। तो हम तीनों कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहते हैं, तीनों की एबिलिटी को जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे करेंगे आगे। एक ही डिपेंड हो गए तो फिर आगे खेल नहीं पाएंगे हम। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको, और फिर भी ऋतिक इसलिए अच्छा कर रहे हैं आपके, तो इसलिए सारे अदर रेडर्स भी अच्छा कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा कि अगर कि आपका वो चांस मिला जहां पे आपने वो टॉप 3 मैचेस में खेलने के लिए, क्योंकि फाइनल्स जाने के लिए वो बेस्ट ऑफ 3 मैचेस में है, तो आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे पूल में से? दूसरे पूल में से सर
अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी डिफेंस सेट होना सभी टीमों का, अभी टाइम लगेगा ये बोलने में, Sorry, जल्दबाजी होगी अभी ये कहना। सॉरी मेरा थोड़ा सुपर टैकल हो गया आपका लेकिन ऑल द बेस्ट, अभी तक एंजॉय कीजिए, टॉप पे हो आप। थैंक यू सो मच, लवली। सो अ लिटिल spot that I put into Dilbag Singh, isn't it? Not to worry at all. Over to you guys, where that coach is really happy. I'm sure the team is also happy now. जूनियर स्टीलर्स की टीम ने इस संस्करण में लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की है। पहला मुकाबला टाई खेला था और आखिरकार पहला पायदान भी हासिल कर लिया है। इस मुकाबले के स्टार रेडर के तौर पे उभरे हैं मयंक सैनी। कुल मिला के 7 रेड पॉइंट निकाले, 14 रेड्स उन्होंने इनिशिएट किए थे और 50% के स्ट्राइक रेट के साथ अपने टीम के लिए ये 7 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं। शुरुआत में ज्यादा चले थे, पहले हाफ में अपनी टीम के लिए अच्छा सपोर्ट दिखाया था, सेकंड हाफ थोड़ा सा साधारण रहा है, लेकिन युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में यदि कोई भी खिलाड़ी स्टार रेडर किसी मुकाबले का बनता है तो पता चलता है कि उनके पास जोश, जज्बा और जुनून है और हर एक क्षमता से लबालब मयंक सैनी इस संस्करण में भी अपना टीम के लिए काम करना चाहेंगे। हिमालयन थार्स का हिस्सा थे पहले, लेकिन उसके बाद उनको भेज दिया गया है जूनियर स्टीलर्स की टीम में और कुछ इस प्रकार उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। जर्सी चाहे कोई सी भी हो, परफॉर्म वो हर जर्सी में करना चाहते हैं। पहले थार्स के लिए अच्छा किया और अब जूनियर स्टीलर्स के लिए बेहतर कर रहे हैं। हर सिचुएशन में उन्होंने पॉइंट निकाले। पहले हाफ में अच्छे खासे पॉइंट निकाले, दूसरे हाफ में फिर उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, लेकिन कार्य उन्होंने बेहतर किया है। ईज माई ट्रिप ट्रैवल वाउचर इनके हाथ में नजर आ रहा है, यानी कि यात्रा के लिए एकदम से तैयार। आप 4 अप्रैल के बाद कहीं भी यात्रा पर जा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं अपने स्पॉन्सर्स का। एक जबरदस्त मुकाबला हमने देखा जिसमें 2 डिफेंडर्स ने हाई फाई किए थे, लेकिन क्योंकि 100% का सक्सेस स्ट्राइक रेट नजर आया था साहिल नरवाल का, इसीलिए इस मुकाबले में स्टार डिफेंडर का खिताब उनके नाम जाएगा। कुल मिला के 5 टैकल इनिशिएट किए थे और 5 में सफलता पाते हुए स्टार डिफेंडर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है साहिल ने। चाहे कवर्स खेला हो, चाहे कॉर्नर्स की तरफ खेला हो, चाहे इनके खिलाफ रेडर आए हो या इन्हें चहलकदमी करते हुए रेडर्स की तरफ जाना पड़ा है, कॉर्नर की पोजीशन पे बैक होल्ड करने की क्षमता दिखाई है। वहीं कॉर्नर छोड़ते हुए डैश करने के एफर्ट्स में भी कभी अपने आप को पीछे नहीं पाया। 3 बार चेतन साहू को अपना शिकार बनाया, रवि तहलान को एक बार पकड़ा था, वीरेंद्र सिंह को एक बार अपनी गिरफ्त में जगड़ते हुए इस संस्करण में अपनी एंकल होल्ड की क्षमताएं भी दिखाई और सुनिश्चित किया कि अपना हाई फाई पूरा करते हुए बन जाए इस मुकाबले के बेस्ट डिफेंडर। और स्टार डिफेंडर को मिलता है ईज माई ट्रिप की तरफ से एक वाउचर जिसमें ऑफ मिलते हैं। आप भी easemytrip.com पे जा सकते हैं, हो सकता है easemytrip.com ने आपके लिए भी, आपके हॉलीडेज के लिए भी किसी प्रकार के कोई ऑफ रखे हों। देखिए, साहिल का पहला और 5वां जो टैकल पॉइंट था वो कमाल का था, पूरी तरह से सरप्राइज करने वाला था। स्टार मोमेंट ऑफ द मैच ऋतिक का ये जो सेव था, जब मिडलाइन के करीब उन्होंने 4 से 5 प्रयास किए थे मिडलाइन को पार करने के, हालांकि दूसरे प्रयास में कुल मिला के 2 पॉइंट अपने साथ ले जाते हुए मिडलाइन को उन्होंने क्रॉस किया और बने स्टार मोमेंट ऑफ द मैच हासिल करने वाले ये खिलाड़ी ऋतिक, जिन्होंने आज अपनी टीम के लिए स्कोर करने में भी एक अच्छा खासा योगदान देते हुए कुल मिला के 6 पॉइंट हासिल किए थे, जो मयंक सैनी से ज्यादा कम नहीं थे, सिर्फ 1 अंक का फासला था। और एक से याद आया, पहला पायदान जूनियर स्टीलर्स का हो चुका है। 3 मुकाबले खेले, 2 जीते, गंवाया अब तक 1 नहीं है और युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में ये एकमात्र टीम है जिसने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। एक टाई जरूर खेला क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस 46 का है, तो अच्छे खासे डिफरेंस के साथ पहले पायदान पे मौजूद है। अब अवसर जयपुर पिंक कप्स के पास है कि अगला मुकाबला जीते पलनी टस्कर्स यदि मैच जीतती है या फिर यूपी फैल्कॉन्स अपना अगला मुकाबला जीतती है। हालांकि यूपी ने 4 मैचेस खेल लिए हैं, तो अगला 5वां मुकाबला जीत के वो भले पहले पायदान पे आए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है कि टॉप 4 में बने रहने के लिए आप कंटेंशन में रहेंगे। हालांकि अभी भी कई सारे मुकाबले खेले जाने बाकी है और पूल ए का सफर इसी प्रकार जारी रहेगा। युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 हरिद्वार के वन्ना कटारिया इंडोर स्टेडियम से सारे मुकाबले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूल बी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ चार्जर्स जो है वो पूल बी से आती है। अपना 3रा मुकाबला खेला, दूसरी हार का सामना किया, पॉइंट डिफरेंस अब सिर्फ 1 अंक का रह गया है और अगली बार यदि हार हुई तो संभवतः माइनस में जाना पड़ेगा। पॉइंट्स कुल मिला के 7 कमाए हैं। हालांकि ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा पूल है जहां ज्यादातर टीम्स के सामने सिर्फ हार ही आ रही है और अगली टीम के साथ जब भी भिड़ंत होती है तो टीम जीतती है और इसीलिए ज्यादा जीत आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ युवा योद्धा एकमात्र टीम है जो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं। उसके अतिरिक्त एक भी टीम ऐसी नहीं है इस पूल में जिसने अपने नाम 2 जीत की हो। इसीलिए चंडीगढ़ चार्जर्स फिलहाल दूसरे पायदान पे है। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स और युवा पलटन की परिस्थितियां थोड़ी सी बुरी है और टॉप 4 से
बाहर कभी भी वो जा सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, लंच करके पुनः फैन कोर्ट पे आइएगा, क्योंकि 4 बजे मैच नंबर 19 आने वाला है। युवा पलटन का खेमा युवा योद्धास से टकराने वाला है। तो 2 युवाओं की भिड़ंत है, किसका तजुर्बा किस पे भारी होगा ये पता चलेगा वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम हरिद्वार में। समय है 4 बजे, तब तक के लिए शब्बा खैर।